all of you on behalf of Jodhpur branch. Our chairman is not available due to his some personal problem. Our subject is our government is also focusing on more and more faceless regime in the income tax. Today's VCM is also on the focus of income tax proceeding under the faceless regimes. I welcome all of you and I invite CA Dhaval Kothari to give the welcome speech. Dhaval ji. Thank you, Surendra sir. Good afternoon to all. I, CA Dhaval Kothari, Vice Chairman of Jodhpur branch, on behalf of Jodhpur branch of CIRC of ICI, welcome you on today's virtual CP meeting. I extend a very warm welcome and greetings to learned speaker of today's VCM, Advocate CA Divyanshu Agarwal ji, and moderator of this event, Vice Chairman of CIRC of ICI, CA Atul Agarwal ji. I also welcome Secretary of Jodhpur branch, CA Surendra Lunawat ji, other managing committee members, all the participants and viewers. In today's era, we all are facing various intricacies under the faceless regime. Faceless is now part of our routine practice. To overcome this kind of intricacies, we have today a learned faculty. Definitely by his word, we will be benefited from today's VCM. Stay safe, stay healthy, and stay happy. Thank you. And by this word, over to CA Surendra Lunawat ji. Now I invite CA Atulji Agarwal. He is the moderator of today's VCM and handing over the charge to him. Sir, Agarwal sir. Thank you, Surendra sir. Respected Chairman, Jodhpur branch in absentia, Vice Chairman Dhaval Kothari ji, Secretary Surendra Lunawat ji, Akshay Nayyar ji, Mohibur Rahman ji, attendees present here, senior members from across the region, and respected speaker of the today's session, Advocate CA Divyanshu Agarwal ji. It is really a very important topic which we are going to discuss today, and we are going to discuss about intricacies which are involved into this faceless regime. So friends, what is important is we need to understand, first of all, we need to understand the mechanism, what is there in faceless regime, and after that we need to understand what is the importance of drafting whenever we are responding any notice, or whenever we are responding or we are filing any application in the income tax department under this faceless regime. So we need to understand all intricacies, and to understand these all intricacies we have with us Advocate CA Divyanshu Agarwal ji, who is a learned personality and practicing in High Court and Supreme Court as well, and taking up all the income tax related issues. So without taking much of the time, as the time is very much important, I would like to invite CA Divyanshu Agarwal ji for his presentation, and at the same time I request all the members present here, whatsoever your queries are there, you can put your queries into chat box. There is no need to mention your membership number and name there, but yes, if you can post your queries there, then we would be in a position to take all the queries at the end of the session. One thing I would like to request Advocate Divyanshu Agarwal ji, as you must be knowing, sir, there are changes in e-filing portal also. So if you can just touch upon certain things related to this new e-portal, what I believe we members may be in a position to understand how to proceed further, because one thing which I could make it out, like in this e-portal, new e-portal, again we need to get registered. We all as a chartered accountant need to get registered again. We all as an SSE need to get registered again. So if we can touch upon that part also, I'm sure all the members will get the benefit out of it. So without taking much of the time, I request CA Divyanshu Agarwal ji for his deliberation. Over to CA Divyanshu Agarwal ji. Thank you so much, everybody. Thank you, learned, respected CA Atul Agarwal ji. Thank you so much, learned, respected CA Dhaval Kothari ji. Thank you so much, learned, respected CA Surendra Lunawat ji. All management committee of Jodhpur branch of CIRC of ICI, and all the participants of this seminar. The topic for today is intricacies in income tax proceeding in faceless regime.
As everybody is aware, time is changing. It is a dynamic world. Everything is changing at a lightning speed. So it is equally important as professionals to understand the intricacies and to update ourselves, because our clients are very much dependent on us in guiding them. So it is equally important for us to understand what are the changes, and also to understand what is the thought process of the government in making the changes, so that we can actually accordingly update ourselves and our firm also. So to start our discussion, let us first start with a quote. I'm sharing the presentation here. Is it visible to everybody? Yes, sir. Thank you. So the quote of a very renowned learned Winston Churchill: to improve is to change, to be perfect is to change often. Friends, as all are aware, the most powerful thing right now is time. आपको जैसे पता होगा, I'll make my communication both in English and Hindi ताकि everybody can connect easily. जैसे आपको पता होगा कि समय के साथ things are changing at a very rapidly speed. हम लोग एक टाइम एरर देखते थे 99 लेट 90s 80s, जब रिटर्न्स फाइल करने के लिए लंबी लंबी लाइनें होती थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, एंड वी सेंड आवर ऑफिस स्टाफ फॉर दैट ओनली कि आप ये 100 रिटर्न्स 200 रिटर्न्स जाइए और इसको फाइल करिए. देखते देखते आपने देखा होगा धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न स्टार्ट हो गया. आज का सिनेरियो ये है कि हम ऑलमोस्ट सारे रिटर्न्स मैंडेटरी ऑनलाइन फाइल हो रहे हैं एक्सेप्ट एक्सेप्शनली सम फ्यू. आपने देखा होगा एक जमाने में रिटर्न प्रोसेस नहीं होता था आपका, रिटर्न प्रोसेसिंग के लिए बहुत टाइम मोर देन अ ईयर लग जाता था. आज आपने देखा होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर आने की वजह से रिटर्न प्रोसेस बहुत फास्ट होते हैं. पहले रिफंड एक बहुत बड़ा टारगेट होता था, बहुत चैलेंज होता था आईटीआर में. आज क्या है, जैसे रिटर्न प्रोसेस होता है, आज के सिनेरियो में मैंडेटरी है इनकम टैक्स के लिए 143 इंटीमेशन 1 इंटीमेशन देना और साथ में प्रोसेस करना, और वो बहुत क्विकली हो रहा है. ऑब्वियसली एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर, बहुत कुछ केसेस ऐसे हैं जहां हाईली रिफंड है, जहां वो प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन. सो टाइम इज चेंजिंग वेरी फास्ट. मैं आपको बिफोर कमिंग टू द मेन पॉइंट मैं आपको बताता हूं, अभी हाल में अप्रैल 2021 में बिजनेस टुडे में एक कवर स्टोरी कवर हुई थी. ये अप्रैल 2021 का बिजनेस टुडे है, जिसमें कवर स्टोरी थी. अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको मैगजीन मिल जाएगी, कवर स्टोरी मिल जाएगी, टैक्स इवेजन नोवेयर टू हाइड. ऑब्जेक्टिव लेने का ये है, ये समझना व्हाट इज द थॉट प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट. सरकार का थॉट प्रोसेस क्या है, चेंजेस क्यों आ रहे हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है. टैक्स इवेजन नोवेयर टू हाइड. Tax authorities are using advanced analytics and AI. AI is artificial intelligence to nab dodgers and boost revenue collection, even as the outcry of harassment by industry gets shriller. पहले क्या होता था, मैनुअल डिस्क्रिशन बहुत ज्यादा होते थे. असेसिंग ऑफिसर कंप्लीटली केस पिक होने के बाद इनफैक्ट पहले तो आपको याद होगा मैनुअल स्क्रूटनी होती थी, फिर धीरे धीरे कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट कैश कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ. आज की डेट में इंफॉर्मेशन बेस्ड स्क्रूटनीज होने लग गए. अब फेसलेस रेजिम में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कैसे डिस्क्रिशन कम करते जा रहे हैं इंडिविजुअल एओ की, और टीम बेस्ड असेसमेंट हो रहा है. यानी अब सारा कोशिश डिपार्टमेंट का ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लैंग्वेज के थ्रू हो, यानी एओ की डिस्क्रिशन नहीं हो कि कौन सा केस में क्या एडिशन करना, वो डिस्क्रिशनरी पावर खत्म हो गई. एक छोटा सा एग्जांपल, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन की तरफ क्यों जा रही है, एक छोटा सा एग्जांपल, एक स्टार्ट आर्टिकल करते हैं. somebody from Rajasthan, take an example, Mr. X from Jaipur और फ्रॉम जेतपुर, उन्होंने 5 लाख का रिटर्न फाइल किया, अपना बिजनेस रिटर्न फाइल किया. 1.5 करोड़ रुपए का बैंक में कैश डिपॉजिट है और 1 करोड़ 40 लाख का कैश विड्रॉल है ड्यूरिंग द ईयर. आप सबको पता होगा बैंक इज अ रिपोर्टिंग एंटिटी. ऑल एआईआर के लिए बैंक रिपोर्टिंग एंटिटी है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के मैटर्स में बैंक रिपोर्टिंग एंटिटी. कोई भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होता है तो बैंक को गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होता है. तो जब ये ट्रांजेक्शन हुआ इतना बड़ा, जो नोमेनक्लेचर में अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन नहीं होता है, तो वो रिपोर्ट हुआ सिस्टम के थ्रू इंफॉर्मेशन आई. द डिपार्टमेंट has checked the return online and they have found that this gentleman has only filed the return for 5.5 or 6 lakh rupees. कहीं भी कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉल कहीं कोई बेस नहीं आ रहा था. So they have raised a query रेज हुई, unanswered. सम्मन आया, unanswered. उसके बाद जो एड्रेस था रिटर्न में और जो बैंक्स में एड्रेस थे वहां पे सर्वे कराया गया, कोई अवेलेबल नहीं.
सर्च में कन्वर्ट हुआ, कोई अवेलेबल नहीं। आज की डेट में सिनेरियो ये है कि एब्सकॉन्डेड है अससी और उसको पूरी सर्च टीम लगी हुई है उसको फाइंड आउट करने में। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो रिटर्न्स में डिस्क्लोज नहीं हो रही, इंफॉर्मेशन आ रही है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, जैसे आप सबको पता होगा एवरीथिंग इज लिंक्ड विद एन आधार, योर पैन इज लिंक्ड विद एन आधार। 30 जून लास्ट डेट। इनफैक्ट कई लोगों ने बताया कि उनके पास एसबीआई से मेल आई है कि अगर आपने लिंक नहीं कराया बाय दैट टाइम तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर देंगे। बहुत सारे इश्यूज है, बहुत सारा प्रेशर है। अब आधार से लिंक का ऑब्जेक्टिव क्या है? डेटा कलेक्शन। बेसिक ऑब्जेक्टिव है एसएससी का, क्या रिकॉर्ड्स है, क्या डेटा है। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अभी बहुत लोगों के मोबाइल आधार से लिंक नहीं है। जिस दिन मोबाइल आधार से लिंक होंगे उस दिन क्या होगा? आप मॉल में गए, आपने एक टेलीविजन खरीदा कॉस्टिंग अराउंड 2.5 लाख रुपीस, कैश पे कर दिया। बड़ी स्टोर होगी तो नहीं लेगा कैश, क्योंकि 2 लाख रुपए का रिस्ट्रिक्शन, इनकम टैक्स में 2 लाख के ऊपर कैश रिसीव नहीं कर सकते। छोटी स्टोर हुआ तो शायद उन्होंने कैश ले लिया। टेक एन एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल। आपका मोबाइल नंबर डाल दिया गया। आपने जब एसएससी अपने सीए के पास गया, उन्होंने रिटर्न फाइल किया, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की क्योंकि बैंक्स में ट्रांजैक्शन आ नहीं रहा है। कैश का ट्रांजैक्शन तो जब तक आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे कंसल्टेंट को भी नहीं पता। अब क्या हुआ? एआईआर के थ्रू, क्योंकि आधार से लिंक था, उस मोबाइल नंबर से लिंक, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अभी नहीं है एज ऑन डेट, बट अनदर ईयर सो शायद ये आप पाएंगे कि ये सारी चीजें शुरू होने वाली हैं। तो मोबाइल नंबर से उन्होंने ट्रैक कर लिया, आधार से ट्रैक कर लिया कि ये ट्रांजैक्शन हुआ। जैसे ये ट्रांजैक्शन हुआ, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, आई विल गो इनटू दैट पॉइंट कि ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, ये फेसलेस में आ रही है। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के टूल से वो ट्रिगर किया रेड फ्लैग कि 2 लाख 2.5 लाख रुपए के ट्रांजेक्शन हुए। पूरा रिटर्न स्कैन हुआ, जो रिटर्न आपने फाइल किया उस रिटर्न में कहीं कोई ट्रांजेक्शन आ नहीं रहा है। तो क्वेरी रेज की गई, कि व्हाट इज द सोर्स। ये एक इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स स्क्रूटनी का रीजन हो सकता है। इस तरीके के बहुत सारे इंफॉर्मेशन, जैसे एआईआर में बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी मोर देन 30 लाख, 50 लाख के ऊपर की प्रॉपर्टी में टीडीएस की लायबिलिटी है, वो रिपोर्ट होते हैं। मान लीजिए 35 लाख की प्रॉपर्टी आपने खरीदी, रजिस्ट्रार से रिपोर्टिंग हो गई, आपने अपने रिटर्न्स में नहीं दिखाया, कैश डिपॉजिट रिटर्न्स में, ये सारे इंफॉर्मेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन ही आने वाले टाइम में रिटर्न्स में ये रीजन होंगे इनकम टैक्स रिटर्न स्क्रूटनी में आने का, इंफॉर्मेशन बेस्ड मैक्सिमम केसेस में। जब ये क्वेश्चन पूछा गया टू द गवर्नमेंट बॉडीज, मेनी ऑफ द लर्नेड रिस्पेक्टेड सीबीडीटी मेंबर्स, तो उनका भी यही जवाब था। एक राइटअप में एक मेंबर ने मेंशन भी किया, इस कवर स्टोरी में आप पढ़ेंगे तो, कि ऑब्जेक्टिव ये है कि जो लोग मोबाइल नंबर दे रहे हैं सारे ट्रांजैक्शंस को हम ट्रैक कर सके, ताकि मैक्सिमम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की हेल्प से हम अनअकाउंटेड इनकम वाले पार्ट को रिड्यूस कर सके और हम ट्रैक कर सके कि ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है। दैट्स द होल आइडिया। और आई थिंक अगर आपको पता होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट अभी चेंज हुई, एमसीए की, इनकम टैक्स की वेबसाइट चेंज होने वाली है कल। आई थिंक रात 12 बजे आपकी नई वेबसाइट फ्लोट हो जाएगी, तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली चेंज क्या है। हमें डीएससी अपलोड करना पड़ेगा वापस। कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव वही है कि सब कुछ मशीन लैंग्वेज से लिंक हो रहा है, यानी आपका जीएसटी में जो डेटा जा रहा है वो क्रॉस चेक होगा आपके आरओसी से, वो क्रॉस चेक होगा आपके इनकम टैक्स से, वो क्रॉस चेक होगा बाकी ट्रांजेक्शन से, या सारा डेटाबेस क्रॉस चेक हो रहा है। आपने पढ़ा होगा, हाल में न्यूज़पेपर में आया था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंटर्ड इनटू एन एमओयू साइन किया सेबी के साथ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ। रीजन, आपके जो ब्रोकर्स हैं, रजिस्टर्ड ब्रोकर्स, आप स्टॉक मार्केट में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, स्पेकुलेशन, बिजनेस लॉस या प्रॉफिट आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ट्रांजेक्शन है, तो अंडरस्टैंडिंग है कि प्रीफिल्ड डेटा आएगा। प्रीफिल्ड कैसे आएगा? क्यों? क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन उनको जब मिलेगा डिपार्टमेंट को, तो ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट अपने रिटर्न में प्रीफिल्ड भेजेगा। हाँ, अब अगर आप अग्री नहीं करते तो आप एडिटेबल, आप उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपको एडिट करने के पहले आपके पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर होने चाहिए कि आप एडिट क्यों कर रहे हैं, और वो डेटा जो रिटर्न में आ रहा है वो डेटा कहां से आ रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है क्रॉस चेक करने का। क्योंकि हो सकता है अगर हम एडिट करें, मेजर चेंजेस करें, तो वो रीजन हो सकता है हमारा केस स्क्रूटनी में आने का। तो पूरा आइडिया फेसलेस का है कि हम इंफॉर्मेशन बेस्ड करें, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू डेटा कलेक्ट करें, ये सारी चीज कलेक्ट करें। ये दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरीथिंग। सो ये रीजन है फेसलेस आने का। अब सर सवाल आता है, फेसलेस आज क्यों? So this faceless is not there. ये पिछले कुछ डिकेड से this is there in the system.
अगर आप मिड 2000s देखेंगे तो कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था इसका। एक चीज और मैं बताऊंगा सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है एक प्रोफेशनल के लिए, जो मेरा मेरा मानना है एक प्रोफेशनल के लिए सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपके पास टोटल 168 घंटे 168 आवर्स होते हैं हफ्ते में, आपको उसको मैनेज करना है। सिटी टू सिटी वेरी कर रहा है आज की डेट में। अगर मैं कहता हूं 10 से 12 घंटे भी आप ऑफिस में रहते हैं, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक भी रहते हैं, टेक एन एग्जांपल 12 घंटे, तो मेरा पॉइंट ये है कि इस 12 घंटे को हम, मेरा टाइम वही 12 घंटे, उसमें मैं काम कितना कर रहा हूं। पहले क्या होता था, अगर आप एक जनरल एग्जांपल में ले रहा हूं सर, ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन अंडरस्टैंडिंग। पहले क्या होता था सर, असेसमेंट के समय आप असेसमेंट, जब टाइम बारिंग असेसमेंट का समय होता था तो आपको 3 बजे का टाइम दिया गया, पूरे रिकॉर्ड्स, कई बार तो मैंने कई ऐसे केसेस भी देखे हैं कि सर पूरी पूरी इनोवा भर के बुक्स ऑफ अकाउंट जाती थी, मतलब उस लेवल पे एनालिसिस होता था। आई हैव सीन दोस थिंग्स आल्सो। आपके पास पूरे रिकॉर्ड्स रखे और आप वेट कर रहे हैं, 3 बजे का टाइम दिया गया और यू वर वेटिंग आउटसाइड द कैबिन ऑफ द लर्नड असेसिंग ऑफिसर। 5:30 बजे तक आपको बुलाया नहीं उन्होंने, या 6 बजे तक ऑलरेडी किसी का नंबर चल रहा है, और कई बार क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से समबडी कम्स, टी कॉफी ये सब चलती रहती है तो डिले हो गया। और बाद में कोई कॉल आ गया सीनियर ऑफिसर का, वो उन्होंने कहा कि सर ऐसा है, अपने स्टाफ को बोला कि आप बोलिए चार्टर्ड अकाउंट साहब को कल आ जाएंगे, मॉर्निंग में आ जाएंगे, कल देख लेंगे। तो अगर आप देखेंगे ये होता था टाइम बारिंग के समय, या लाइन लगी होती थी लोगों की। तो आप अगर देखते हैं तो 3 से 4 घंटे आपके एक्चुअली खराब हो गए। तो आपके पास जो वो इफेक्टिवली 12 घंटे में या 10 घंटे थे, उसमें 4 घंटे आपके खराब हो रहे। इस तरीके से वीक में बहुत सारा समय खराब होता था। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये भी एक पॉइंट है, फेसलेस में सर सब कुछ ऑनलाइन है। आप अपनी कन्वीनियंस से, अपने ऑफिस से, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से यू कैन फाइल ऑल योर रिटर्न्स, यू कैन फाइल ऑल द सबमिशंस, जो भी रिप्लाई है उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, उसको डाउनलोड करके क्लाइंट अपनी क्वेरी बना के क्लाइंट को भेज सकते हैं, उसके आंसर्स ले सकते हैं, अपने सबमिशन बना के फाइल कर सकते हैं। पहला सर, पहली आज लास्ट डेट है रिटर्न कोई चीज डॉक्यूमेंट सबमिशन फाइल करने की। अब सर 7 बजे के बाद ऑफिसर चला गया, अब आप आज नहीं फाइल कर पा रहे हैं, हो सकता है उसने ड्राफ्ट ऑर्डर बना लिया, अगले दिन मॉर्निंग में आप जब तक पहुंचते उसने ऑर्डर इश्यू कर दिया, हो गया, अब कैसे करें। अब इस केस में फेसलेस में क्या है सर, रात को 12 बजे के पहले तक आपका टाइम है सर, यानी 11:59 तक आप रिप्लाई फाइल कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस से। मतलब आप चाहे अपने ऑफिस से करें, लेट बैठे घर से करें, व्हाटएवर, अपनी कन्वीनियंस से आप डॉक्यूमेंट्स फाइल कर सकते हैं, जो पहले नहीं था। मैं प्लस बता रहा हूँ सर, माइनस भी है, हर एक चीज का प्लस माइनस दोनों होता है। तो बहुत सारी चीजें आसान हो गई सर, बट डिफिकल्टी पार्ट जो आ रही है फेसलेस में, वो डिफिकल्टी ये आ रही है सर, पर्सनल हियरिंग सबसे बड़ा इशू है। पहले आप सर सबमिशन फाइल करना सब कुछ नहीं होता, कि आपके पास क्वेरी आई, मैं एग्जांपल लेता हूं, बहुत सारे इंट्रिकेट इश्यूज है सर, जैसे पेनी स्टॉक इशू, ट्रांसफर प्राइसिंग इशू, मर्जर एंड एक्विजिशन इशू, सेक्शन 68 का इशू। अब सबमिशन बना के आपने एओ को दे तो दिया सर, लेकिन अब क्वेश्चन ये हो रहा है कितना उसको समझ में आ रहा है फैक्ट्स, उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास रिसोर्स नहीं है इतना, कितना उसको समझ में आ रहा है, और उसको समझ में नहीं आएगा वो क्या ऑर्डर करेगा आपको भी नहीं पता। लेकिन कई बार क्या होता है, जब आप 1-to-1 फेस टू फेस बैठते थे, सो यू कैन रेज कि सर प्लीज सी पेज नंबर 38 पैरा नंबर 2, आप लिंक बनाते थे, कनेक्ट द डॉट्स, आप सारी लिंक बना के देन यू गो टू द जजमेंट केस लॉस, आप उसको रेलेवेंट पैरा दिखाते थे कि देखिए भाई साहब ये राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट है, जुरिस्डिक्शनल हाईकोर्ट है, और इस राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वो भी कर रखा है। तो ये सारे पॉइंट्स आप रेज करते थे, उसको समझ में आता तो वो एडिशन डिलीट कर देता था। अब प्रॉब्लम क्या है, आपको कुछ भी नहीं पता, आप सबमिशन ही फाइल कर सकते हैं, रिप्लाई फाइल कर सकते हैं, हियरिंग की अपॉर्चुनिटी है आपके पास, लेकिन आपको ऊपर के ऑफिसर्स में रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। रीजनल असेसमेंट सेंटर में आऊंगा उस पॉइंट पे, रिक्वेस्ट प्लेस करेंगे और वो उनकी डिस्क्रिप्शन है, वो आपको परमिशन दे या ना दे, दैट इज देयर डिस्क्रिप्शन, दैट इज कंप्लीटली देयर डिस्क्रिप्शन, ये उनकी डिस्क्रिप्शन है पूरी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है सर, और ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, फंडामेंटल राइट जो है, जिसकी वजह से रिट्स भी फाइल हो रहे हैं, बहुत रिट्स फाइल हो रहे हैं, दिल्ली हाईकोर्ट में, बॉम्बे हाईकोर्ट में, राजस्थान हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में, गुजरात हाईकोर्ट में, अलग अलग जगह रिट्स फाइल हो रहे हैं सर, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हमारा फंडामेंटल राइट है, और बिना अपॉर्चुनिटी फॉर हियरिंग दिए वो ऑर्डर पास नहीं कर सकता। तो माइनस बैक एंगल जो है वो ये है। दूसरा, पहले सर जो ई असेसमेंट होता था, अगर आपको पता है तो आप ऑनलाइन फाइलिंग तो करते थे सर, लेकिन आपको असेसिंग ऑफिसर पता होता था,
उसके फुटनोट में हर नोटिसेस में उसकी ईमेल आईडी होती थी, उसका लैंडलाइन नंबर होता था, ऑफिस का एड्रेस होता था। कि कई बार क्या होता आपको नहीं भी पता था, आप और रिप्लाई तो ऑनलाइन फाइल करते थे, लेकिन कई बार रिक्वेस्ट करके उनसे जाके मिलके उनको एक्सप्लेन कर देते थे कि सर ये सारे एस्पेक्ट्स हैं। जो था, जो विंडो अगस्त 2020 से खत्म हो गया क्योंकि फेसलेस हो गया। ना कुछ नहीं सर, 2019 सितंबर में नोटिफिकेशन आ गई थी ई असेसमेंट के। आप और हम क्या कर रहे हैं सर, आप और हम ई सेमिनार कर रहे हैं। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक सेमिनार कर रहे हैं। आप हमें देख पा रहे हैं, हम आपको देख पा रहे हैं। ज्योग्राफिक लोकेशन मैटर नहीं करती कि सर मैं कहाँ हूं, अतुल सर कहाँ है, आप कहाँ है, वो मैटर नहीं करता। ये ई है। फेसलेस हुआ जहां आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं, हम आपको नहीं देख पा रहे हैं, और अगर हियरिंग भी हुई तो बस हम एक दूसरे की आवाज सुन पा रहे हैं, पॉइंटर्स बता पा रहे हैं, लेकिन वी डोंट नो, हम एक दूसरे को नहीं देख पा रहे। दैट इज कॉल्ड फेसलेस। और यही पहले नोटिफिकेशन जो ई असेसमेंट का था, और इस बार ई असेसमेंट स्कीम को फेसलेस असेसमेंट स्कीम में कन्वर्ट कर दिया गया 2020 के नोटिफिकेशन में। और बहुत बड़ा क्रेडिट मैं कहूंगा सर कोविड को भी। कोविड की वजह से हम जितना आगे आ गए टेक्नोलॉजी में, गवर्नमेंट आ गई, वो शायद 3 साल लगता और इस चीज को लाने में, जो हम बहुत क्विकली आ गए। बिकॉज लास्ट ईयर जब फर्स्ट वेव आया कोविड का और नेशन लॉकडाउन हुआ, तो हम लोग मजबूर हो गए घर से काम करने पे। वी वर नॉट अवेयर, हमें नहीं मालूम था सर कि काम कैसे करेंगे, जूम क्या होता है, वेबएक्स क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट टीम क्या होती है, नहीं मालूम था। बड़ा मुश्किल होता था कैसे करें, लेकिन धीरे धीरे विद द पास्ट टाइम हम अडेप्टेबल हो गए। हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी ऑनलाइन सेमिनार शुरू कर दिए। बट जब ये स्टार्ट हुआ तो बहुत चैलेंज ये था कि अब करेंगे कैसे। हम मिल तो सकते नहीं सर, ज्यादा रश नहीं कर सकते बिकॉज स्टेट की सर्कुलर्स हैं, इससे ज्यादा लोग नहीं हो सकते, क्राउड नहीं हो सकता। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अब सर ये पॉइंट आता है कि दिव्यांशु एआई फेसलेस आज स्टार्ट हुआ। सर आंसर आज का नहीं है सर, ये बहुत पहले से स्टार्ट हुआ। तो अगर किसी चीज को जानना है सर, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो इनटू द बैकग्राउंड। मतलब कहते हैं ना सर, किसी का बैकग्राउंड जानना है कि ये इस बंदा ये स्टेचर है, तो उसका देखते हैं कि वो कहाँ आया, किस फैमिली में आया, कैसे कैसे बड़ा हुआ। सो बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। और एक सी है, हम लोग भी अपने सेक्शन का भी बैकग्राउंड देखते हैं कि ये सेक्शन क्यों आया। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कैसे हुआ। पहला पॉइंट सर, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, आपको याद होगा लेट जिन लोगों ने आर्टिकलशिप की है या उस पीरियड के थे, आज की यंग जनरेशन शायद नहीं जानेगी जो अभी 4-5 साल में आर्टिकलशिप किया या जो क्वालिफाई हुए, क्योंकि उन्होंने वो पैटर्न देखा नहीं काम का कभी। तो आज एक कॉन्सेप्ट आया, इलेक्ट्रॉनिक फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम स्कीम 2004 सर, एंड दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड वे बैक एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन 2004, जिसमें कहा वॉलंटरी बेसिस पे सारी कैटेगरीज ऑफ असेट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग कर देंगे। सर आज आप सोचिए समय क्या होता है। सर आज ऑनलाइन फाइलिंग इज सो इजी, हम इतने हैबिचुअल हैं। लेकिन जब 2004 में आया सर, तो बहुत रिजिडिटी थी, लोग आना नहीं चाह रहे थे ऑनलाइन। बहुत कम लोग थे जिनके पास, उस जमाने में कंप्यूटर्स भी बड़े बड़े होते थे सर, डेस्कटॉप लैपटॉप कंसेप्ट बड़े लिमिटेड ऑफिसेज में लैपटॉप होते थे जो बड़े ऑफिसेज थे, बाकी हैवी डेस्कटॉप्स होते थे। समय के साथ सब चेंज होना शुरू हो गया। गवर्नमेंट ने सबसे पहले पायलट बेसिस पे 2006 जुलाई में, सबसे पहले 2006 जुलाई में मैंडेटरी किया। अगर आपको याद होगा, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर 5-6-6-7 असेसमेंट ईयर वाज द फर्स्ट ईयर सर, पहला साल था जिसमें सारे कॉर्पोरेट एसएससीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग मैंडेटरी हुआ था। इनकम टैक्स में पहले हुआ था सर, बाद में सर्विस टैक्स में ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी किया था, जो अब तो खैर जीएसटी बन गया। इनडायरेक्ट टैक्सेस में बाद में आया। इनकम टैक्स में कंपनीज में 2000 असेसमेंट ईयर 6-7 वाज द फर्स्ट ईयर जिसमें ऑनलाइन फाइलिंग मैंडेटरी की कंपनीज की। उसके बाद ग्लिचेस पता चले, क्या चैलेंजेस हैं, फिर वो इंडिविजुअल्स पे इंप्लीमेंट किया। असेसमेंट ईयर 13-14 में सर सबके लिए मैंडेटरी था फेज्ड मैनर में, एक्सेप्ट फ्यू। और आज सर आप मेरे ख्याल से सिर्फ बारिंग इंडिविजुअल्स अबव 80 इयर्स ऑफ एज जो सहज या सुगम रिटर्न फाइल करो, उनको छोड़ के सबके लिए मैंडेटरी है। इनफैक्ट जिनको मैक्सिमम इनकम चार्जेबल टू टैक्स नहीं भी है, उनमें भी कुछ क्राइटेरिया दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना है तो रेंट इतना है, तो वो क्राइटेरिया में जो लोग फॉल कर रहे हैं उनके लिए वैसे ही मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न है। तो बहुत नॉमिनल, बहुत लिमिटेड लोग होंगे जो आउटसाइड द एम्बिट होंगे सब। अब सर एक और अगला पॉइंट, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताता हूं सर, एक बड़ा अच्छा पॉइंट। सर आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया का रोल बहुत ज्यादा आ गया सर, बड़ा खुशी मिलता है सर डालने में, ट्रैवल टू न्यूजीलैंड, ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, ट्रैवलिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हम बोलिविया घूम के आ रहे हैं, हम स्विट्जरलैंड गए, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री। लेकिन कभी ये सोचा सर, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आपका पूरा डेटा ट्रैक हो रहा है,
आप रिटर्न 6 लाख का फाइल कर रहे हैं और आप ऑस्ट्रेलिया घूम रहे हैं, जहां जाने का मतलब ही है कि 5-6 लाख रुपए तो आपने खर्च किए होंगे। अगर फैमिली के साथ गए तो 7-8 लाख कहीं नहीं गया। रीजन, हमारी रुपी की वैल्यू भी तो डेप्रिशिएटेड है ना सर ऑस्ट्रेलियन डॉलर के कंपैरिजन में। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इंफॉर्मेशन में ये आता है कि ये इंडिविजुअल का रिटर्न तो 5-6 लाख का जा रहा है, तो ये ट्रैवल कैसे कर रहा है, यानी अनअकाउंटेड इनकम होगी। दिस वाज द थॉट व्हिच इज गोइंग। तो आप ये समझिए सर, आपका ट्विटर अकाउंट, आपका लिंक्डइन अकाउंट, आपका फेसबुक अकाउंट, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, और भी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हैं, मे बी टेलीग्राम, एवरीथिंग इज ट्रैकिंग स्टेज में। आपकी रिस्क प्रोफाइल बनाई जा रही है, सारा इंफॉर्मेशन। अब क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जो नया साइट आएगा सब कुछ लिंक हो रहा है सर, यानी आरओसी, एक्साइज, जीएसटी, सॉरी नॉट एक्साइज, जीएसटी, आरओसी, कस्टम्स, सब लिंक होगा और एक प्रोफाइलिंग बन रही है आपकी तरफ। उस प्रोफाइलिंग के हिसाब से आपके हर रिटर्न्स को एनालाइज किया जाएगा। और जहां भी गैप है सर, यानी आपके रिटर्न में अगर टर्नओवर के फिगर में 5 रुपए का भी गैप आ गया ना सर, आरओसी में और आपके जीएसटी में, तो आपका रेड फ्लैग इश्यू हो जाएगा ऑटोमेटिक सिस्टम से, यानी गैप है, क्योंकि सारा डेटा सिंक्रोनाइज हो रहा है सर। रिस्क प्रोफाइल, जैसे आप लोन लेने जाते हैं बैंक से, एनबीएफसी से, क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं, तो सिविल में आपका प्रोफाइल देखा जाता है, उस हिसाब से आपको लोन दिया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है। इसी तरीके से रिस्क प्रोफाइलिंग है, जैसे आपका मेजर सोर्स है आपका एआईआर सर। अब अगर हम एआईआर की बात करें तो एआईआर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन ट्रैक होती है। जो डेटा इनकम टैक्स को मिलता था, आपको पहले भी पता होगा, लेकिन आपके पास नहीं होता था। तो उस चीज को इजी करने के लिए आपको धीरे धीरे इनकम टैक्स ने बोला कि आपको सारा डेटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और 26 ईयर्स को इनकम टैक्स विल अपडेट एवरी 3 मंथ्स, और आपके पास सारा इन्फो, यानी आज आपके पास जीएसटी का टर्नओवर का इन्फॉर्मेशन भी 26 ईयर्स में आएगा। मुझे ऐसा मेरा मानना है सर कि आने वाला समय वो आएगा कि आपका सिविल क्रिमिनल केस या आपका इंसॉल्वेंसी का मैटर चल रहा है, वो भी 26 ईयर्स में रिपोर्ट हो जाएगा। तो सारी चीजें आने वाले टाइम में 26 ईयर्स में आएगी। बैंकर को सिर्फ 26 ईयर्स निकालना है आपको, वो आइडेंटिफाई कर लेगा। तो इस तरीके से आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग हो रही है। लेकिन यस, एक बहुत अच्छा मूवमेंट रहा कि पहले हमारे लिए डिफिकल्ट होता था सर कि जब मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूं, मैं एसएससी से क्वेश्चन पूछता था। आज जब 26 ईयर्स में रिकॉर्ड्स अपडेट होंगे, लैंड की डिटेल्स आएगी, कैश डिपॉजिट की डिटेल्स आएगी, तो एज सीए हम भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एसएससी को कि ये क्या चीज है बताओ, ये 26 ईयर्स में आया है और हमें इसको अकाउंट फॉर इनकम टैक्स रिटर्न में करना है। पहले एसएससी ने अगर नहीं बताया, हमने रिटर्न फाइल कर दिया, बाद में ड्यूरिंग द असेसमेंट में इंफॉर्मेशन आती थी तो हम कॉपी मांगते थे ऑफिसर से कि सर रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लर्न इट गुड सर, प्लीज गिव मी द कॉपी ऑफ द सेम so that we can file a rebuttal, या हम उसका रिप्लाई फाइल कर सकें। बट 2018 जुलाई 2020 में नया 26 ईयर्स फॉर्म आ गया, जिसमें दे आर गिविंग यू ऑल द डिटेल्स एंड दे अपडेट डिटेल्स एवरी 3 मंथ्स। एसएफटी ट्रांजैक्शन भी रिपोर्ट हो रहा है, आप हर चीज क्रॉस चेक कर सकते हैं। सीपीसी, जैसे मैंने आपको बताया सर, आपको पता भी नहीं है सर, इट इज नाउ 10 ईयर्स। सेंट्रल प्रोसेसिंग रिटर्न स्कीम जो नोटिफाई हुई थी, ये नोटिफाई हुई थी 2011 में। पहला स्टेप था टुवर्ड्स फेसलेस। सीपीसी एक सेटअप बनाया गया बेंगलुरु में, हु रिपोर्ट्स टू द डीजी सिस्टम्स, डायरेक्टर जनरल सिस्टम्स, बेस्ड इन डीजी सिस्टम्स होता था, उनको रिपोर्ट करते थे, और आप एक टोल नंबर से उनसे इंटरेक्ट करते थे। और आप जब आईटीआर फाइल भी करते तो वहां जाता था सीपीसी बैंगलोर, आप भेजते थे आईटीआर, साइन करके बाद में वो आधार ओटीपी से होना शुरू हो गया। वहां से वो रिटर्न को ई वेरीफाई होते ही वो देखते थे, प्रोसेस करते थे रिटर्न। पहले 143(1) इशू करना जरूरी नहीं होता था, 143(2) कई बार आ जाता था, बाद में गवर्नमेंट की क्लैरिफिकेशन आई और मैंडेटरी कर लिया कि इंटीमेशन इशू करना है 143(1) का, तो इंटीमेशन आना शुरू हो गया। ये सारा बहुत फास्ट हो गया, पहले नहीं था, ये सारा बहुत फास्ट कर दिया इन्होंने बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न्स की। अच्छा, टाइम रिडक्शन भी हो गया, बहुत सारी चीजें रिड्यूस हो गई। पहले टाइम बहुत लगता था सर, बहुत बार डिपार्टमेंट का फॉलोअप करना पड़ता था, कंटिन्यूअसली जाना पड़ता था पता करने के लिए, वो सीधे सीधे रिड्यूस होना शुरू हो गया सर। फिर आया सर एक कॉन्सेप्ट पेपर लेके आए, पेपरलेस असेसमेंट इन 2015 सीबीडीटी अंडर पायलट स्कीम। जो आपने देखा होगा ऑनलाइन असेसमेंट शुरू हुआ, ई असेसमेंट सर, ये शुरू हुआ 15-16 में 5 शहरों से। दे हैव स्टार्टेड विद 5 सिटीज ओनली। फिर 16-17 फाइनेंशियल में उसमें 2 शहर और ऐड हो गए। कौन कौन से शहर थे सर? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद।
जनरली ये कुछ शहर हैं जहां पे ये लोग पहले चेंजेस लाते हैं। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी एंड ऑल दी शहरों में पहले पायलट बेसिस पे आया, पायलट बेसिस पे पता चल गया कि ग्लिचेस क्या है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, एटलीस्ट वो गवर्नमेंट को पता चल रहा है, तो उस हिसाब से वो रेक्टिफाई कर रहे हैं उसको। फाइनली 17-18 यानी असेसमेंट ईयर 18-19 आप लोगों ने आज आपके पास जो ऑर्डर्स आ रहे हैं सर असेसमेंट के फेसलेस के, वो असेसमेंट ईयर 18-19 के ऑर्डर्स आए हैं आप लोगों के पास। तो 17-18 और जिसका टाइम एक्सटेंशन भी हुआ है, तो अभी बेस्ड ऑन दिस क्लैरिफिकेशन ऑफ कोविड जो 30 जून है वो 18-19 के लिए किया है। तो फाइनेंशियली 17-18 में पेपरलेस असेसमेंट मैंडेटेड कर दिया गया था 7 सिटीज में फॉर ऑल केसेस सिलेक्टेड फॉर स्क्रूटनी अनलेस द टैक्सपेयर हिमसेल्फ डिजायर्स टू ऑप्ट आउट ऑफ द स्कीम। यानी आपने डिजायर किया कि आपको बाहर जाना है तो ठीक है, नहीं तो ये मैंडेटरी। यानी पहले सर पायलट बेसिस पे आया, इनिशियली लॉन्च किया गया, लॉन्च करने के बाद जैसी सारी चीजें हो गई पायलट बेसिस पे लॉन्च किया, और फिर उनको पता चला क्या ग्लिचेस आ रहे हैं, दे हैव रिमूव्ड द ग्लिचेस, आफ्टर रिमूविंग इट दे हैड मेड इट मैंडेटरी। तो आप देखिए कैसे सिस्टमैटिकली धीरे 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 दे आर मेकिंग द प्रोसेस टुवर्ड्स पेपरलेस। Instruction number 1/2018 dated February 12, 2018 was an instruction which was issued by CBDT जिसमें कहा they have directed that entire proceedings in all pending scrutiny assessment cases shall be only paperless except for such related assessment। यानी 153 ABC की प्रोसीडिंग छोड़ के सारे केसेस जो होंगे वो पेपरलेस होंगे। और ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का सिंपल है टू मेक इट इलेक्ट्रॉनिक, जो भी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के बीच में और टैक्स पेयर के बीच में इलेक्ट्रॉनिकली, ऑब्वियसली उसका ऑडिट ट्रेल होना चाहिए कि क्या डॉक्यूमेंट मांगा, क्या दिया, पूरा ट्रेल होना चाहिए। दैट्स द होल आइडिया, क्योंकि जब ऑनलाइन होगा तो हर एक चीज का डॉक्यूमेंटेशन है। सर आज आप व्हाट्सएप पे कोई चैट करते हैं तो आज उस चैट को आप डिलीट करें नहीं करें, लेकिन अगर गवर्नमेंट वांटेड टू एक्सट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम देयर तो व्हाट्सएप को वो चैट की कॉपी व्हाट्सएप के पास सेव्ड है, वो व्हाट्सएप को देना पड़ेगा। सो एनीथिंग व्हिच इज देयर, साइबर लॉ में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं सब कि एवरी डिजिटल ट्रांजैक्शन हैज इट्स फुटप्रिंट। आपने फेसबुक पे फोटो अपलोड कर दी, वो फुटप्रिंट में है, उसका फुटप्रिंट है, वो ट्रेस किया जा सकता है। तो जो भी डिजिटल डोमेन में डॉक्यूमेंट जाता है उसका ट्रेल है। पहले सर क्या होता था, पेपर आपने ऑफिसर को दिया, पेपर मिसप्लेस हो गया, ठीक है, अब दिक्कत। अब एक बात है, एक बार आपने ऑनलाइन असेसमेंट के समय डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दिए, एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो गया, वो परमानेंटली वहां पे रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। पहले आप ऑर्डर शीट लेने के लिए भागते थे, आज की डेट में ऑर्डर शीट इज योर एक्नॉलेजमेंट। हर प्रोसीडिंग का ट्रेल आपके ई प्रोसीडिंग ITBA पोर्टल में सारी प्रोसीडिंग का ट्रेल अवेलेबल है। यानी आपको सिर्फ उसमें से जाना है, डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट लेना है और आपको अपनी फाइल में अटैच करना है। आपको एओ के पास, पहले एओ के पास जाने की जरूरत अब नहीं होती है कि आप मुझे मुझे नोटशीट की कॉपी दीजिए, सब कुछ सिस्टम में ओरिएंटेड है। दैट इज द होल आइडिया ऑफ द गवर्नमेंट कि हर एक चीज डॉक्यूमेंटेड सिस्टमैटिकली इलेक्ट्रॉनिक मोड में होना चाहिए। आज आपको पता है सर, डिन नंबर अगर किसी डॉक्यूमेंट में नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट नल एंड वॉइड है, उस डॉक्यूमेंट की कोई सैंटिटी नहीं। ये कॉन्सेप्ट क्यों आया? हर सोल्यूशन जो आती है उसके पीछे कोई प्रॉब्लम होता है, जब तक प्रॉब्लम नहीं है तब तक सोल्यूशन नहीं निकाला जाता। कुछ ऐसे केसेस देखे गए जहां ऑफिसर्स ने नोटिस इशू किया 148 का बिना रिकॉर्ड में लिए और आपको असेसी को बुलाया, वॉट एवर बी द मोटिव इज, बट वो सिस्टम में डिस्पैच नंबर जनरेटेड नहीं था, उसमें वो सिस्टम में रिपोर्टेड नहीं था। अब उसमें जो भी कहा, तो इस प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया डिन, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। यानी हर डिन नंबर ट्रेल्ड है, हर डिन नंबर डॉक्यूमेंटेड है। अगर वो इशू हुआ है नोटिस, उस सिस्टम में उसकी डिटेल्स आ रही है। ऐसा नहीं कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड बाय हैंड आपको सर्विस करा दी, कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, और बाद में जब आपने कहा कि ठीक है मैं आप ये कर लीजिए, मैं आपकी नोटिस फिर आपका सिस्टम से हटा देंगे। तो अब डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर के बाद कोई नोटिस हट नहीं सकती। नोटिस की क्वेरी का रिप्लाई आप देंगे, सिर्फ रिप्लाई देने के बाद सर हर चीज जो है वो है। अब इसमें एक बहुत बड़ा फायदा क्या है सर, आज एओ के लिए 148 में केस रीओपन करना बहुत आसान है। आपको पता है 143(3) की प्रोसीडिंग के बाद 148 में चेंज ऑफ ओपिनियन इश्यू आता है, उसमें 148 में नल एंड वॉइड कॉश हो जाती है। लेकिन अगर कोई भी एज मटेरियल फैक्ट्स आपने, उसने 10 क्वेश्चन रेज किया, 6 का जवाब दिया, 4 का नहीं दिया, और वो फाइनली उस 4 पे डिस्कस ना करके ऑर्डर क्लोज कर दिया है उन्हें। बाद में नया ऑफिसर आता है, नए ऑफिसर ने फाइल को देखा और उसने देखा 4 क्वेश्चन का आंसर नहीं दे गया, और उस 4 पे कोई क्वेरी उसको या कोई इंफॉर्मेशन आई है, तो फॉर्मेशन टू रीजन टू बिलीव फॉर्म करके
वो रीजन रिकॉर्ड करके सैंक्शन करा के 148 इशू कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि अगर सिस्टम में डॉक्यूमेंट है तो आपको हर एक क्वेरी का कंप्लायंस करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये कॉन्सेप्ट डिन का इंट्रोड्यूस हुआ 2009 में। दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस इन 2009, मिसलेनियस चैप्टर इनकम टैक्स एक्ट में, जिसमें 282 भी इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन करने की थॉट तो अच्छा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, 12 साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था इंडिया में। सो फाइनली मजबूरी में 2011 में जब ये प्रॉब्लम आने लगी, भाई ऑब्वियसली प्रॉब्लम डिपार्टमेंट को आ रही है, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं आ रहा है, तो बहुत सारे लोग चैलेंज करने लगे, तो उन्होंने 2011 में सेक्शन ही ओमिट कर दिया गवर्नमेंट ने। यही सेक्शन वापस री इंट्रोड्यूस हुआ। सर मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स आप देख रहे हो, वेदर यू टॉक अबाउट डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी, ये सारा थॉट प्रोसेस में बहुत पुराना चल रहा है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा था, ये सारा इस बार इम्प्लीमेंटेशन हुआ। तो DIN was there in 2009 only, omitted from the act in 2011, reintroduced again, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर रॉबस्ट हो गया। मैं आपको बताऊंगा 2019 में, आपको याद होगा आज की डेट में ट्विटर बहुत पॉपुलर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री में, और इनकम टैक्स की ट्वीट पहले आती है, नोटिफिकेशन 5 मिनट बाद आता है, और कई बार नोटिफिकेशन ट्वीट में आता है, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेते हैं। यानी रिटर्न फाइलिंग में डेट एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी, ये इन्फॉर्मेशन वहां दी जाती थी, ये इन्फॉर्मेशन वहां दी जाती थी। सर्कुलर एक नंबर है 19/2019, डेटेड August 14, 2019। नोट करना चाहे सर आप नोट कर ले, मतलब ये कल को आप अपना रिप्लाई बना सकते हैं, बिना डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर के कोई नोटिस आता है। CBDT made it mandatory to furnish DIN on all communication by an income tax authority relating to assessments, appeals, orders, statutory or otherwise, exemption, inquiry, investigation, verification of information, penalty, prosecution, rectification, approval, etc. on or after the 1st day of October 2019. So 1st October 2019 and onwards, any notice you have received without DIN number, that is treated as null and void and you can challenge it. उस नोटिस की कोई, यानी अगर 148 इश्यू हो गया सर बिना डिन के और लास्ट डे है तो गेम ओवर। बट हाँ, वो माने ना माने एओ, लेकिन आप प्लीडिंग अपना ले लीजिए, सबमिशन में आगे ये कॉश होगा। अब एक और पॉइंट आया सर, इसी तरीके से आपको याद होगा, फर्स्ट अपील, कमिश्नर इनकम टैक्स अपील, ऑनलाइन फाइलिंग बहुत पहले शुरू हो गई। This concept was started by the government on a pilot basis in paperless assessment in 2015. जैसे assessment उन्होंने pilot basis पे कुछ cities में start किया, same thing they have started on a pilot basis the paperless assessment concept of e-filing of appeal with Commissioner Income Tax appeal. मैं बताता हूँ क्यों हुआ सर। CIT अपील और AO डिपार्टमेंट और रेवेन्यू के अंडर में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। IT/AT लॉ मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में। तो कोई भी रूल्स, इट इज मोर इजी टू मेक इट फॉर फर्स्ट अपील एंड द एओ, और CIT अपील इज आल्सो सिट इनटू द आर्म चेयर ऑफ एओ। आप जब भी फर्स्ट अपील में जाते हैं, आपने देखा होगा CIT अपील चाहे तो असेसिंग ऑफिसर को बुला सकता है अपॉर्चुनिटी के लिए, नहीं तो वो एज एन एओ बन के खुद डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर सकता है। एंड दे आल्सो हैव एन एनहांसमेंट पावर जो किसी और फोरम में नहीं है। दे कैन सेट असाइड, CIT अपील डोंट हैव अ सेट असाइड पावर, वो सेट असाइड नहीं कर सकती। ये पावर 1998 में ही चेंज, बजट के बाद ही हटा दी गई, जो आज तक कभी नहीं आया। तो CIT अपील रिमांड रिपोर्ट कॉल कर सकता है, आप रिजॉइंडर फाइल कर सकते हैं, लेकिन सेट असाइड नहीं कर सकता। IT/AT हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड कर सकता है, CIT अपील नहीं कर सकता। IT/AT हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है, इनहैंसमेंट नहीं कर सकता। फर्स्ट अपील इनहैंसमेंट कर सकता है, दे हैव एन इनहैंसमेंट पावर। सो फर्स्ट अपील इज अ वेरी क्रिटिकल स्टेज। तो CBDT ने वाइड प्रेस रिलीज डेटेड 30 दिसंबर 2015 मैंडेटरी कर दिया इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ अपील। तो उसके बाद शुरू में सर कुछ प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने मैनुअल भी लेना शुरू कर दिया जिन लोगों को टेक्निकल, लेकिन 6 महीने साल भर के बाद वो मैंडेटरी कर दिया कि मैनुअल तो हम लेंगे ही नहीं, यू फाइल इट ऑनलाइन, ऑटोमेटिकली ऑनलाइन एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है। आज तो सर ई प्रोसीडिंग इतना रॉबस्ट है कि जैसे ऑर्डर पास होता है, ई प्रोसीडिंग में आते हैं, उसी के जैसे आप देखते हो ऑर्डर पास करते हैं, उसी के राइट हैंड साइड पे फर्स्ट अपील का लिंक आ रहा है, जहां आप क्लिक करके फॉर्म 35 ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। पहले क्या था, अदर फॉर्म्स में जाके आपको फॉर्म 35 ओपन करके जाना होता था। आज क्या है, फॉर्म 35 हिट करते वो डिन नंबर, अगर 4 ऑर्डर्स चल रहे हैं तो वो डिन नंबर दिखाएगा आपको। आपको डिसाइड करना है कौन से डिन नंबर पे ऑर्डर आया, जिस डिन नंबर के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर रहे हैं। तो थिंग्स बिकम सो रॉबस्ट। कल जब नया वेबसाइट लॉन्च होगा, फिर देखना होगा कि और क्या चेंजेस उसमें किया।
लेकिन मैं ये कहूंगा अब जो नई वेबसाइट है वो यूजर फ्रेंडली ज्यादा होने वाली है, लेकिन यस दे आर गोइंग टू कैप्चर ऑल योर डेटा, आपका सारा डिजिटल फुटप्रिंट कैप्चर होगा, आपकी आईपी एड्रेस जिस लैपटॉप से आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं सब कुछ कैप्चर होगा, सारा डेटा सारा कुछ अब आप नई वेबसाइट पे कैप्चर, और जो भी आप देंगे सब सिंक है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से, सीबीआईसी में जो आपका जीएसटी रिटर्न या कस्टम का जो भी जा रहा है उससे सब कुछ लिंक होगा। तो कहीं भी किसी भी लॉ में कोई भी अगर गैप आया वो रेड फ्लैग इश्यू होगा ऑटोमेटिकली, और उस बेस पे क्वेरी आएगी आपके पास, मे बी इनडायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स किसी भी लॉ में, क्योंकि सबने एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन के थ्रू सारा डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कर रहा है। सर फेसलेस असेसमेंट में सबसे पहले सितंबर 2019 12 सितंबर 2019 को एक ई असेसमेंट स्कीम लाई गई थी सर, उसका नाम था ई असेसमेंट स्कीम। असेसमेंट ही था सर, क्यों ई था सर? ई इसलिए था कि इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट था, लेकिन आपको एओ के बारे में पता था, आप एओ से आपको ये पता था वो कहाँ बैठते हैं, आपको मालूम था कि सर कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, आपने ऑनलाइन फाइल करके एओ से रिक्वेस्ट की कि सर ये फाइल क्या है, आप चाहो तो पैरा नंबर 3-4 देख सकते हैं, आप अपनी फैसिलिटेशन किससे मिल रहे थे उससे बताने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली एओ को समझ में आएगा तो जस्टिस करेगा, तो आपको ऑर्डर उसी हिसाब से हो सकता है एडिशन डिलीट कर दे, जो प्रपोज्ड एडिशन शो कॉज में ले रहा है, और एओ को समझ में नहीं आएगा। सर एओ एक एओ का बैकग्राउंड भी जानना जरूरी है सर, बहुत जरूरी है, मतलब हम लोग कहते हैं ना सामने वाले को थॉट प्रोसेस जानना जरूरी है। एक एओ सर मान लीजिए वो आईआरएस ऑफिसर है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से, ही इज असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी, बट उसका बैकग्राउंड साइकोलॉजी से था सर या बीए से था, बट 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, ओवर अ पीरियड टाइम एडिशनल कमिश्नर बनते बनते उनको सब समझ में आ जाता है। जो कॉमर्स मान लीजिए बहुत सारे ऐसे हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाद से आईआरएस करते हैं, उनको समझाना मुश्किल नहीं है सर, वो समझ जाएंगे, उनको आता है, लेकिन सर जो बीए या कहीं और से आए हैं उनको समझाने के लिए, क्योंकि जरूरी नहीं ना सर वो ट्रांजैक्शन या बिजनेस ट्रेड समझ पा रहे हो, तो उनको समझाने के लिए 1-to-1 बैठना जरूरी ही था। तो कई बार हमें लगता था कि नहीं हम जाके मिल लेते, उनको एक्सप्लेन कर देते तो उनके लिए भी इजी हो जाएगा। सर ई में तो चल रहा था, बट जो नया नोटिफिकेशन नंबर 60/2020 आया अगस्त 13 2030 में, उसमें वो कॉन्सेप्ट खत्म करके ई असेसमेंट स्कीम का नाम फेसलेस असेसमेंट स्कीम 2019 कर दिया गया। दिस वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट। इसी तरीके अब मजेदार चीज क्या है सर, वेरी इंटरेस्टिंग, आप सोचिए प्रोएक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट। इंटरेस्टिंगली देखिए वो अगस्त 2020 में अनलॉक्स हुए, बहुत मुश्किल से काम, और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी 50% कैपेसिटी से सारे कंसल्टेंट, बिकॉज सीए का रोल बहुत बड़ा है सर, बिजनेस जब भी कोई स्टार्ट होता है सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आता है, फिर सीए के बाद से लॉयर के पास आता है जब लिटिगेशन फंसता है। तो एक सबसे बड़ी चीज आप देखिए, जैसे ही फेसलेस अगस्त 2020 में लॉन्च हुआ, कुछ मैटर्स मेरे भी चल रहे थे बिफोर लर्नेड फर्स्ट अपील, सीआईटी अपील, आप विश्वास करिए सर ऑर्डर रिजर्व हो गया, ऑर्डर डिस्पोज नहीं हुआ, नई नोटिफिकेशन आ गई सितंबर 25 2020 कि हम फेसलेस अपील स्कीम 2020 लेके आ गए। आज तक ऑर्डर डिस्पोजल नहीं हुआ, फिर से सबमिशन फाइल कर रहे हैं जबकि जजमेंट रिजर्व था मेरा, बट ठीक है, क्यों? क्योंकि इंटरनल इंस्ट्रक्शन दे दिया गया सारे फर्स्ट अपील्स को कि आप कोई ऑर्डर आप पास नहीं करेंगे। अब इंटरनल इंस्ट्रक्शन की वजह से कोई ऑर्डर या तो उन्होंने पास कर दिया तो पहले कर दिया तो ठीक, नोटिफिकेशन आने के बाद किसी ने इश्यू नहीं किया, वो रीफिक्सिंग हुई और वो फेसलेस में गया। उसके बाद ऑब्वियसली उस पीरियड में आपको याद होगा विवाद से विश्वास बहुत प्रेवलेंट था, विवाद से विश्वास में बहुत सारा फॉलोअप होने लगा, नोटिफिकेशन आने लगे कि अगर आप विवाद से विश्वास में जा रहे हैं तो बताइए, नहीं तो सबमिशन फाइल करिए ग्राउंड वाइज। अब मैं आता हूं सर, इंट्रिकेसीज क्या है फेसलेस असेसमेंट में, क्या है फेसलेस, जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज फेसलेस असेसमेंट? दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड, ये कॉन्सेप्ट पहले ई असेसमेंट स्कीम के फॉर्म पे आया, ये कॉन्सेप्ट ई असेसमेंट स्कीम में 12 सितंबर 2019 को आया सर। उसके बाद अनदर नोटिफिकेशन डेटेड 13 अगस्त 2020 को ये बन गया फेसलेस असेसमेंट स्कीम। यानी अब आपको सिर्फ एक एंटिटी के बारे में पता है, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, एनएफएसी, आपको और नहीं पता कुछ भी। उसके बाद आपको पता है ऑर्डिनेंस पास करके कई डेट्स एक्सटेंड की गई थी लास्ट ईयर, उसके बाद ऑब्वियसली ऑर्डिनेंस हैज इट्स लाइफ साइकिल, उसको बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराना बहुत जरूरी, तो देन द गवर्नमेंट हैज गेट इट डन। और टैक्सेशन एंड अदर लॉज रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजन एक्ट 2020 पास हुआ, जिसने इनकम टैक्स अमेंड किया और एक नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया
जिस प्रोविजन को हम सर कह रहे हैं, जो आप आज की डेट में आपके एक्ट में यूज हो रहा है 144B। 144B फेसलेस असेसमेंट इंट्रोड्यूस किया। कुछ कंपैरिजन देखते हैं सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई असेसमेंट एंड फेसलेस, क्या था दोनों में डिफरेंस, जानना चाहते हैं। सेकंड कॉलम देखिए, फर्स्ट ई असेसमेंट पायलट बेसिस पे लॉन्च हुआ, टोटल 58,319 रेगुलर असेसमेंट्स पिक हुए अंडर 143.3 स्क्रूटनी असेसमेंट, बस पायलट बेसिस। लेकिन जो फेसलेस है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरीबॉडी फॉर असेसमेंट 18-19। और जब नोटिफिकेशन, व्हेन दे हैव इशूड अ नोटिफिकेशन ऑन 13 अगस्त 2020, उस समय जितने पेंडिंग रीअसेसमेंट्स थे वो इसमें चले गए फेसलेस में। साइमल्टेनियसली बेस्ट जजमेंट असेसमेंट 144 की पावर सर ई में नहीं थी, लेकिन फेसलेस असेसमेंट में उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया, यानी 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वी कैन पास। पैरा नंबर 4 देखते हैं सर, राइट ऑफ पर्सनल हियरिंग। द assessee was entitled to a personal hearing by way of a video conferencing, telephony, in case of being in disagreement with the draft assessment order in all assessment cases. वहां पे ऑप्शन वीडियो टेलीफोनी का था, ऑब्वियसली फेस तो तब भी नहीं मिल सकते थे, यहां पे सर ऑप्शन खत्म कर दिया। assessee is not entitled to a right of a personal hearing and has to request for the same to the chief commissioner or the director general at the regional e-assessment center. आप रीजनल e-assessment center को रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं, दैट इज ऑल। एक्सेप्टेंस करना नहीं करना दैट इज देयर डिस्क्रिप्शन। आप यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस, अभी तक जितने लोगों ने मांगा, अंटिल हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया तो अलग बात है रिट में, अदरवाइज किसी को, आई थिंक मेरी नॉलेज अभी तक जितने लोग हैं उनको हियरिंग नहीं मिली अपॉर्चुनिटी, वो जो भी सबमिशन में फाइल हुआ वही फाइल हुआ, पर्सनल हियरिंग नहीं मिली। कुछ टर्मिनोलॉजी जानते हैं जो फेसलेस में यूज होती है, कुछ टर्मिनोलॉजी है लाइक नेशनल फेसलेस ई असेसमेंट सेंटर। आप लोग सबको पता होगा इस बार असेसमेंट 18-19 के ऑर्डर्स आए हैं सबके पास या आने वाले होंगे। रीजनल फेसलेस ई असेसमेंट सेंटर, there are one national faceless e-assessment center based in Delhi, New Delhi, headquartered in New Delhi. There are 8 regional faceless e-assessment center: Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, Bangalore, Hyderabad, Pune and Ahmedabad. 8 cities, 8 जगह रीजनल फेसलेस ई असेसमेंट सेंटर बनाए गए। हर रीजनल फेसलेस ई असेसमेंट सेंटर के अंदर में 4 यूनिट्स। पहला असेसमेंट यूनिट जो असेसमेंट करेगा, पहले वो एओ करता था, इसी को कहते हैं टीम बेस्ड असेसमेंट। दूसरा वेरिफिकेशन यूनिट जो वेरीफाई करेगा। तीसरा टेक्निकल यूनिट जो बताएगा कि हाँ टेक्निकली उसको जो मर्जर्स एंड एक्विजिशन, फॉरेंसिक ऑडिट, एनीथिंग रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन उसे चाहिए वो, ट्रांसफर प्राइसिंग वो देगा, पेनी स्टॉक वो देगा। फोर्थ रिव्यू यूनिट, यानी ऑर्डर आने के बाद भी रिव्यू करेगा कि ये ऑर्डर सही है या नहीं, यानी बहुत राउंड्स ऑफ रिव्यू का प्रोसेस इस फेसलेस में दिया गया, जो पहले एओ के पास नहीं होता था। वो एक ही एओ होता था सर, उसी का एक ही आईटीओ होता था, या एसी होते थे या डीसी होते थे, उसी का एक इंस्पेक्टर होता था, उसी का स्टाफ होता, उनके लिए भी कई बार डिफिकल्ट होता था। अब इट इज अ टीम बेस्ड असेसमेंट, यानी बहुत सारी टीम इन्वॉल्व है। बस मैं एक ही चीज कहूंगा, आपको किसी के बारे में नहीं पता चलेगा, आपको सिर्फ नेशनल फेसलेस के बारे में पता चलेगा, बाकी सब, इसे हम एक वर्ड यूज करते हैं ओपेक मिरर, यानी वो तो सब जानते हैं, आप जो फाइल कर रहे हो उनको तो सब पता है आप कौन है, आपको नहीं पता वो कौन है। आपको बस ये पता है फेसलेस ई असेसमेंट सेंटर, लेकिन कौन से चीफ कमिश्नर देख रहे हैं वो आपको नहीं पता, आपको बस फेसलेस असेसमेंट सेंटर के बारे में पता रहेगा, ये यहां से आ रहा है, दैट्स ऑल। एक एंटिटी, एक बॉडी। असेसमेंट यूनिट का रोल क्या है सर? असेसिंग ऑफिसर से कंपेयर करें, इश्यूज आपने क्या किया सर? इश्यूज आइडेंटिफाई करना, पॉइंट्स बनाना, मटेरियल देखना, कोई इंफॉर्मेशन या क्लैरिफिकेशन चाहिए तो उसको आइडेंटिफाई करना, और कोई मटेरियल अगर फर्निश आपने किया या किसी थर्ड पार्टी से भी तो इंफॉर्मेशन आती है ना कि सर थर्ड पार्टी ने बोला, उसकी बुक्स में उसने बायर सेलर, आप जैसे आपके जीएसटी में मिसमैच आता है, बायर सेलर की इंफॉर्मेशन दी है तो उनको इंफॉर्मेशन मिली, उन्होंने उस बेसिस पे आपसे इंफॉर्मेशन सीखी, वो इंफॉर्मेशन या तो असेसी से लेंगे या थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन लेंगे। पहले क्या था सर, थर्ड पार्टी के लिए 133(6) या समन इश्यू होता था, या आपसे मांगते थे, जैसे सेक्शन 68 हो गया,
कि सेक्शन 68 का ऑनर्स डिस्चार्ज आपको करना पड़ता था, ये जो लोन की एंट्री है या कैश क्रेडिट है ये आपको, वो सारी चीजें अभी भी हैं। अब क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन है, अब असेसमेंट यूनिट को अगर कोई वेरिफिकेशन बुक्स का कराना होगा तो वो डायरेक्टली नहीं बोलेगा, वो अपने मेन फादर से बोलेगा, लुक प्लीज नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, प्लीज दिस इज माय इशू, प्लीज सेंड इट टू एनी ऑफ द वेरिफिकेशन यूनिट। अब आप बड़े इंटरेस्टिंग, नेशनल फेस, मैं बोलूं रीजनल फेसलेस में 4 यूनिट है और 8 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट कम्स टू 32। अब जैसे आपने रिक्वेस्ट की वेरिफिकेशन की, वो किसी से भी वेरिफिकेशन करा सकता है। मान लीजिए आप जोधपुर में हैं और प्रॉपर्टी आपकी बॉम्बे में है, टेक एन एग्जांपल, तो हो सकता है वेरिफिकेशन यूनिट को जो प्रॉपर्टी का वेरीफाई कराना है वो कोई मुंबई के आसपास के एरिया के किसी ऑफिसर को दे दे कि तुम वेरीफाई कराओ, क्योंकि ट्रैवल कॉस्ट बचेगी ना सर। वो किसी को भी दे सकता है, तो जरूरी नहीं जो असेसमेंट यूनिट ने क्वेरी रेज की उसी के रीजनल में दूसरा वेरिफिकेशन यूनिट किसी को भी दे सकते हैं वो, लेकिन सारी क्वेरी दोनों तरफ से फेसलेस को ही जाएगी। वो फेसलेस यूजिंग मशीन लैंग्वेज डिसाइड करेगा कि किसको देना है, यानी डिस्क्रिशनरी फेसलेस के पास भी नहीं, दे यूज ऑटोमेटेड मशीन लैंग्वेज। ये समझिएगा, वेरिफिकेशन यूनिट का काम है सर इंक्वायरी करना, क्रॉस वेरिफिकेशन करना, बुक्स को एग्जामिन करना। पहले ये सारा काम एओ करता था, विटनेस को एग्जामिन करना और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, ये वेरिफिकेशन यूनिट करके देगा। बट ये सारा कुछ वेरिफिकेशन यूनिट अपने रिपोर्ट में फेसलेस असेसमेंट सेंटर को देगा नेशनल, वो नेशनल मुझे वापस करेगा, यानी सब कुछ नेशनल के वाटर मार्क पे आ रहा है। यानी एज असेसमेंट यूनिट मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मान लीजिए लूनावत सर हैं जो वेरिफिकेशन कर रहे हैं, मैं ऑफिसर बैठा हूं यहाँ पे, तो लूनावत सर ने, मुझे नहीं मालूम कि लूनावत सर रिपोर्ट दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो रिपोर्ट अतुल जी से आ रही है, यानी नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर से आ रही है। तो मुझे कुछ अगर लूनावत सर से चाहिए तो मैं फेसलेस को बोलूंगा, वो उनके पास जाएंगे, उनकी रिपोर्ट उनके पास जाएगी, वहां से मेरे पास आएगी। यानी हम दोनों को ये मालूम है कि जिसको भी मांगना है वो फेसलेस है, बट फेसलेस का नाम नहीं पता हमें कि कौन चीफ कमिश्नर के पास रहेगा, ये किसी को नहीं पता। एंड एवरीथिंग इज यूजिंग ऑटोमेटेड लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसी को कहीं कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है सर। इसी तरीके से सर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता था, आपको याद होगा, एओ हमेशा ये पॉइंट रेज करते थे कि आप जो असेसी है वो तो बेस्ट लॉयर बेस्ट सीए के साथ आ रहे हैं, बेस्ट ब्रेन जो शहर का होता है उसको लेके आ रहे हैं, जिनको सारी नॉलेज है, हमें कहां से सारी नॉलेज आएगी। ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी गवर्नमेंट, उन्होंने एक टेक्निकल यूनिट बनाई जिसका काम है लीगल नॉलेज, जिनको पता है कि इस इश्यू पे कौन कौन से हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी गई है, उनको सब पता है। दे हैव अ टीम। फॉरेंसिक का कोई है, कोई फ्रॉड हुआ है उसके बारे में, ट्रांसफर प्राइसिंग डेट, कोई भी टेक्निकल इश्यूज है, दे हैव अ सेपरेट टीम ऑफ टेक्निकल यूनिट, अलग अलग डेडिकेटेड टीम है। ट्रांसफर प्राइसिंग अलग टीम है जिसमें टीपीओस बैठे हुए हैं एडिशनल, जिनको सिर्फ ट्रांसफर प्राइसिंग पता है। नहीं कुछ भी आपको चाहिए, आपको जो भी सपोर्ट चाहिए दे दीजिए, आपको पूरी रिपोर्ट, आपका काम क्या है, आप असेसमेंट ऑर्डर में जो टेक्निकल रिसर्च होती थी ना सर लीगल वाली, वो सब उनका उठाइए और कॉपी पेस्ट करके अपने ऑर्डर में लगा दीजिए। आपको कुछ ब्रेन नहीं लगाना है, आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर फैक्चुअल देखना है आपको। यानी वो भी क्वेरी थी, अब उनको सपोर्ट टेक्निकल यूनिट से मिलेगा। अब ये सारा करने के बाद असेसमेंट यूनिट जो ऑर्डर पास करता है वो पास करता है ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर। आफ्टर पासिंग अ ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास करने के बाद, अब सर आप देखो ड्राफ्ट ऑर्डर पहले क्या था, एओ ड्राफ्ट ऑर्डर एक्सेप्ट ट्रांसफर प्राइसिंग केसेस छोड़ दे तो नॉमेनक्लेचर में एओ फाइनल ऑर्डर पास करता था, 156 की डिमांड नोटिस देता था, कॉम्प्यूटेशन देता था अपनी, और आपकी पहले 271 1C की नोटिस देता था, अब 270A की नोटिस देता है, या 271 AA की नोटिस दे रहा है, ये करता था पहले। अब क्या है, ड्राफ्ट ऑर्डर आपने नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर को दे दिया। अब नेशनल फेसलेस को के पास रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, मैं अभी एक चार्ट बनाया, चार्ट के फॉर्म में आपको प्रोसेस समझाऊंगा, मैं सिर्फ बैकग्राउंड दे रहा हूँ। तो रिव्यू यूनिट का काम क्या होता था, रेलेवेंट मटेरियल जो है उसको चेक करना कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो दिए गए वो सारे डॉक्यूमेंट्स थे या नहीं थे, सारे डॉक्यूमेंट्स को कंसिडर किया कि नहीं किया ऑर्डर में, सारे एविडेंसेस को कंसिडर किया कि नहीं, सारे पॉइंट फैक्ट्स के और लॉ के लिया कि नहीं लिया ऑर्डर में, जो इशू थे डिसअलाउंसेस एडिशंस के उसको प्रॉपर्ली डिस्कस किया कि नहीं, क्या क्वेरी थी, क्या रिप्लाई दिया, क्या थर्ड पार्टी से रिप्लाई, सारा मर्ज करके ऑर्डर में लिया कि नहीं, सारे जुडिशियल डिसीजन है वो कंसिडर हुए कि नहीं, कोई अर्थमेटिकल एरर तो नहीं कि जिसकी वजह से 154 रेज हो जाए, वो देखा। वो सब देख के रिव्यू यूनिट अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा फेसलेस को। अगर फेसलेस को लगेगा रिव्यू यूनिट का रिपोर्ट सही है तो वो क्या करेगा, किसी और जिसने ड्राफ्ट ऑर्डर बनाया उसको नहीं, किसी और असेसमेंट यूनिट को कहेगा ये पकड़ो ड्राफ्ट ऑर्डर, ये पकड़ो रिव्यू यूनिट का रिपोर्ट,
और इन दोनों को देखो और एक फाइनल ड्राफ्ट ऑर्डर बना के मुझे दो। वो फाइनल ड्राफ्ट ऑर्डर उसके पास जाएगा, फेसलेस के पास। फाइनल ड्राफ्ट ऑर्डर वो एनालाइज करेगा और उसको लगेगा कि कोई एडिशन है जो आपके अगेंस्ट हो रहा है, तो वो आपको शो कॉज के साथ वो सबमिट कर देगा कि आप उसका रिप्लाई फाइल कर दें। ऑब्वियसली अगर नहीं करेगा तो वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, आपको बिना अपॉर्चुनिटी दिए वो एडिशन नहीं कर सकता, वो आपको सबमिट कर देगा कि आप उसका रिप्लाई एज एन एसएससी फाइल कर दीजिए। दिस इज व्हाट द प्रोसेस ऑफ द रिव्यू यूनिट। सर 144B को हमने फ्लो चार्ट में डिजाइन किया है सर, ये 144B है सर। 2 शीट्स में हम समझाते हैं, 2 स्लाइड्स में 144B क्या है। सर ये स्टार्ट हुआ, ये दिस इज क्लॉज 1, दिस इज क्लॉज 1। नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर ने नोटिस इशू की सबसेक्शन 2 of 143 which is a jurisdictional notice. There are a lot of high court, supreme court says this is a jurisdictional notice. 143(2) इशू नहीं करेंगे तो null and void हो जाएगा असेसमेंट। तो सबसे पहले 143(2) नोटिस इशू किया फेसलेस असेसमेंट सेंटर ने, जो पहले ये करता था। उसके बाद दे हैव गिवन यू 15 days टाइम, 15 दिन का समय दिया टू फाइल अ रिप्लाई। एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो यू नीड टू मूव एन एप्लीकेशन एंड सीक एन एक्सटेंशन फ्रॉम द नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा, लॉ कहता है आपको, और सर लॉ को कंप्लाई करना बहुत जरूरी है, आपको उसका वो लेना पड़ेगा। असेसी टू फाइल रिस्पॉन्स टू नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। कौन से 3 केसेस में असेसी ने नेशनल फेसलेस आपको इंटीमेट करेगा कि आपका केसेस 144B में आएगा? केस नंबर 1 सर, जहां 139 सेक्शन में आपने रिटर्न फाइल कर दिया, मे बी बिलेटेड, मे बी रिवाइज, मे बी ओरिजिनल, व्हाटएवर, या 140 अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल किया तो 142(1) के बेस पे आपने रिटर्न फाइल कर दिया, 148(1) के बेस पे रिटर्न फाइल कर दिया आपने, वो केस आएगा। यानी या दूसरा केस जहां 142(1) के बेस पे आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, या तीसरा केस जब 148(1) और 142(1) के बेसिस पे भी आपने रिटर्न फाइल नहीं किया। ये सारे तीनों कैटेगरी ऑफ केसेस इसमें आ जाएंगे। और देखते हैं सर, असेसी ने रिस्पांस फाइल कर दिया 143(2) का, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर ने असाइन किया यूजिंग ऑटोमेटेड लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, उसने केसेस को असाइन कर दिया। अब इस पॉइंट पे आते हैं, असेसमेंट में अब असेसमेंट यूनिट को केस अलॉट कर दिया, किसी भी 8 रीजनल असेसमेंट सेंटर में किसी एक असेसमेंट यूनिट को अलॉट कर दिया केस। अब असेसमेंट यूनिट ने पेपर्स पढ़े, डॉक्यूमेंट देखा और उन्होंने कहा मुझे क्या चाहिए। पहले मांगा ऑब्टेनिंग फर्दर इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम असेसी एंड थर्ड पार्टी। उसने कहा मुझे 7 इंफॉर्मेशन असेसी से और चाहिए, यानी उसके लिए जो पहले एओ 142(1) इशू करता था आपको, अब 142(1) एओ रिक्वेस्ट असेसमेंट यूनिट करेगा, इशू नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर वाटरमार्क लगा के करेगा। और फिर बोला कि ये मुझे 4 इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी से चेक करानी है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है ये सही है कि नहीं। कई बार जीएसटी का रिटर्न मिसमैच भी है तो वो चेक कराएगा, कि उनसे चेक कराइए। ठीक, अब क्या हुआ, नेशनल फेसलेस ने क्या किया, जो इंफॉर्मेशन एसएससी से लेना था वो 142(1) इशू कर दिया एसएससी को अपने वाटरमार्क पे कि ये इंफॉर्मेशन दीजिए मुझे, एसएससी को दिया। जो आपके पास आपने वो असेसमेंट 18-19 का कराया होगा, प्लीज अपने माइंड में याद करिए, दिमाग में, कि वो लिंक करिए जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपको सेक्शन समझ में आ जाएगा पूरा। 142(1) आता था, वो फेसलेस नहीं करता था सर, वो असेसमेंट यूनिट क्वेरी रेस करता था, उसके बाद फेसलेस वाटरमार्क लगा के भेजता था। फिर कुछ इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी के पास गया, वो आपको नहीं पता, वो सीधा थर्ड पार्टी। अब कई बार ऐसा होगा कि आपको कई बार इंफॉर्मेशन मांगी जाती थी सर, लेकिन आपके केस में नहीं, किसी और के केस में कहा जाता था ये आप मुझे कंफर्मेशन, जैसे डेटर क्रेडिटर कंफर्मेशन होता था ना सर असेसमेंट में, तो पूछा जाता था उनकी बुक्स में आप डेटर में आ रहे हो, इज इट करेक्ट, तो आप अपने बुक्स का लेजर आपसे मांगते थे, आप अपना लेजर देते थे, हाँ ये है, तो जो मिसमैच आता था वो फिर एसएससी से पूछते थे ये क्या चीज है, तो आपसे इंफॉर्मेशन से आपसे जो मांगी जाएगी वो भी फेसलेस फॉरवर्ड करेगा आपके पैन पे, आपके आईटीबीए पे आपको इंटीमेट करेगा। अब दूसरा सर, अब असेसमेंट यूनिट को कुछ चीजें वेरीफाई करानी थी, होता है पहले एओ के साथ आप जाते थे ना, वो कहते थे आइए बुक्स ऑफ अकाउंट लेके आइए, बड़ी बड़ी बुक्स लेके आते थे आप, और कॉम्प्लेक्स बुक्स में वो स्पेशल ऑडिटर को अपॉइंट कर देते थे, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है नहीं समझ पा रहा हूं मैं, तो
जो वेरिफिकेशन करना है वो फेसलेस से कहता था कि फेसलेस, नेशनल फेसलेस सर प्लीज मेरा वेरीफाई करा दो। तो वो किसी भी 8 रीजनल असेसमेंट में किसी भी वेरिफिकेशन यूनिट को कहता था, जनरली मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई एम नॉट सेइंग दिस इज करेक्ट, बट जनरली जहां पे भी प्रॉपर्टी या कोई लोकेशन होता था जहां का ज्यूरिसडिक्शन वेरीफाई कराना होता था, मैं मानता हूं कि आई थिंक वेरिफिकेशन यूनिट वहीं के आसपास का होता है। अब मान लीजिए जोधपुर की कोई प्रॉपर्टी, जोधपुर में किसी की प्रॉपर्टी नोएडा में, तो हो सकता है नोएडा के आसपास का जो वेरिफिकेशन यूनिट हो उसको असाइन किया जाता होगा कि आप जाके फिजिकली वेरीफाई कर लो इस चीज को, ये है या नहीं है। ये मेरे क्योंकि जोधपुर से कोई ट्रैवल नहीं करेगा, वो किसी ना किसी आसपास वालों को वो दे देंगे कि आप वेरीफाई करके रिपोर्ट सबमिट करो। नेशनल फेसलेस असाइन द केसेस टू वेरिफिकेशन यूनिट। तीसरा, आपने पूछा कि सर ये पोजीशन है सेक्शन 68 पे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ट्राइब्यूनल ने क्या बोला। आपने कहा सर जोधपुर बेंच का क्या व्यू है, राजस्थान हाईकोर्ट का क्या व्यू है, इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्या पोजीशन, एसएलपी फाइल हुई है कि नहीं। वो कहेगा मुझे टेक्निकल यूनिट से असिस्टेंस चाहिए। और नेशनल फेसलेस को बोले, नेशनल फेसलेस किसी भी टेक्निकल यूनिट, 8 रीजनल फेसलेस ई असेसमेंट सेंटर में सर किसी भी टेक्निकल यूनिट को वो सेंड कर देंगे और कहेंगे प्लीज सबमिट योर रिपोर्ट। मतलब आप समझिए जो असेसमेंट ऑर्डर में, आपको मालूम है असेसमेंट ऑर्डर में जो लीगल रिसर्च है ना वो कॉपी पेस्ट होती है सर टेक्निकल यूनिट की। एओ का काम नहीं है, वो रिपोर्ट में से जो रेलेवेंट चीज है वो पैरा डाल देता है, यानी पूरी लीगल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब कुछ डाल देगा टेक्निकल, वो टेक्निकल यूनिट से आ रहा है। बट वो कौन दे रहा है, ना तो टेक्निकल यूनिट को पता एओ कौन है, ना एओ को पता कि टेक्निकल यूनिट कौन है, ये किसी को नहीं बताया जाता है। सब मशीन के थ्रू हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेटेड लैंग्वेज। अब आते हैं सर, अब आपने एसएससी से इंफॉर्मेशन मांगा। कई बार ऐसा होता है आपके क्लाइंट टैक्स से भी नहीं है, आपने देख कई बार ऐसा होता है डिसीज्ड एसएससी होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उनके बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, उनको नहीं पता होता, कई ऐसे केसेस देखे होंगे आपने। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया सर, ऑरेंज में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया सर। अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो नेशनल फेसलेस 144 में शो कॉज इशू करेगा बेस्ट जजमेंट करने के पहले, कि जिसे हिंदी में कारण बताओ नोटिस कहते हैं, शो कॉज नोटिस दे इशू 144 कि गिव मी द रीजन। अगर एसएससी ने रिस्पॉन्स फाइल कर दिया विद इन द टाइम और एक्सटेंडेड टाइम, तो उस केसेस में जो भी रिप्लाई आएगा वो वापस नेशनल फेसलेस असेसिंग ऑफिसर यानी असेसमेंट यूनिट को ट्रांसफर कर देगा। दिस इज द इंफॉर्मेशन, नॉर्मल वाला भी 142(1) या शोकॉज 144 वाला भी, वो सब चला जाएगा। और अगर आपने रिप्लाई तब भी नहीं फाइल किया, कई बार एसएससी की डेथ हो जाती है, नहीं पता, आपने देखा होगा बाद में सीए इन्वॉल्व होते तो आईटीबी में पता चलता है कि कुछ आया हुआ है, उनको पता नहीं, फिर वो ऑर्डर डिसीज के नाम से फाइल होता है। अभी हाल में एक दिल्ली हाईकोर्ट में हम लोगों ने मैटर किया था जिसमें इस पे नोटिस इशू हुआ और इसमें ये डायरेक्शन हमने इंटीमेट करने के बाद भी उन्होंने डिसीज एसएससी के नाम से ऑर्डर पास कर दिया और कहा रिकवरी लीगल हेयर से करेंगे, सेक्शन 51, 59। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं कि क्या होगा। कोई रिस्पॉन्स इशू नहीं हुआ तो उस केसेस में नेशनल फेसलेस इंटीमेट करेगा असेसमेंट यूनिट को कि देखिए क्वेरी रेज होने के बाद भी सर एक चीज समझिए, अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो आप एक एक रास्ते बंद कर रहे हैं। मतलब यू हैव टू स्ट्रांगली गिव अ रीजन लेटर ऑन फर्स्ट अपील में कि क्यों रिस्पॉन्स नहीं फाइल कर पाए। तो एक चीज मेरा मानना हमेशा है, जो हम लोग ड्राफ्टिंग में आएंगे, रिप्लाई जरूर फाइल करिए, और कोई रीजन से आप रिप्लाई नहीं फाइल कर रहे हैं तो आपके पास जस्टिफाइड रीजन होना चाहिए कि क्यों नहीं रिप्लाई फाइल कर पा रहे हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सारी चीज होने के बाद आप देखिए रिपोर्ट रिसीव फ्रॉम वेरिफिकेशन यूनिट टेक्निकल यूनिट बाय एनएफएसी, यानी आपका क्वेरी, थर्ड पार्टी का रिप्लाई, वेरिफिकेशन यूनिट का रिपोर्ट, टेक्निकल यूनिट का रिपोर्ट, सब कुछ असेसमेंट यूनिट के पास आ गया। अब एओ को क्या करना है सर? कुछ नहीं करना, ऑर्डर बनाना है उसको, दैट्स ऑल सर। अब आता है एओ का ऑर्डर बनाने का काम। अब आप, मैं जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूं प्लीज अपने माइंड में आप लिंक करिएगा सारी चीज जो आप अभी तक प्रैक्टिकली फेस करें, तो आप इजिली सेक्शन को समझ पाएंगे। पहले फाइनल ऑर्डर पास होता था सर, एक्सेप्ट ट्रांसफर प्राइसिंग छोड़ रहा हूं मैं, उसको एक्सक्लूड कर रहा हूं, उसमें एक प्रोविजन था ड्राफ्ट ऑर्डर का, बाकी में नॉर्मल फाइनल ऑर्डर पास होता था। आफ्टर कंसिडरिंग ऑल मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड, असेसमेंट यूनिट टू मेक ड्राफ्ट ऑर्डर सर। ड्राफ्ट ऑर्डर, अब ये देखिए, ड्राफ्ट ए ऑर्डर प्लस डिटेल्स ऑफ पेनल्टी टू बी इनिशिएटेड, ये बना के वो अल्टीमेटली उनके गॉडफादर जो है वो फेसलेस असेसमेंट सेंटर है, सारा कुछ इन्हीं के थ्रू होना है। दे सेंड इट टू नेशनल फेसलेस असेसमेंट। पहले वो डायरेक्टली आपको इशू करते थे सर फाइनल ऑर्डर, अब नहीं, अब ड्राफ्ट ऑर्डर फेसलेस को देंगे रिव्यू करने के लिए कि आप देखो सही है कि नहीं। नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर कौन है सर? सारे चीफ कमिश्नर्स इनकम टैक्स, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, यानी वो लोग जो अगले लेवल पे शायद प्रमोट होके सीधे मेंबर सीबीडीटी बनेंगे,
वो सारे टॉप लेवल के ऑफिसर्स फेसलेस असेसमेंट सेंटर में बैठे हुए हैं सर, हेडेड बाय फेसलेस। ऑब्वियसली उनके साथ उनकी टीम है पूरी, एसी, डीसी, आईटीओ हेडक्वार्टर सब है, लेकिन जो टॉप बॉसेस हैं वो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स, वो लोग बैठे। उनके पास गया, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी मैंने आपको समझाया ना सर, इंफॉर्मेशन बेस्ड, इंफॉर्मेशन बेस्ड इज द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी जो टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब बाय बोर्ड रहेगा। प्लस ऑटोमेटेड एग्जामिनेशन टूल यूज करके वो ये एग्जामिन करेंगे कि क्या क्या क्वेरी का रिप्लाई गया, क्या एविडेंसेस आए और उस बेस पे क्या ऑर्डर पास बनाया। फिर नेशनल फेसलेस अप्लाई करेगा ब्रेन, ये देखिए सर, इज इट डिजायर अ रिव्यू? सर पहले नहीं होता था ये, सीधे फाइनल ऑर्डर एक ही इंसान अपना ब्रेन लगाता था, ये टीम बेस्ड असेसमेंट है। प्लस पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग रिव्यू करेंगे इसको, दैट इज अ प्लस पॉइंट। एरर रिड्यूस होगा, एरर तो तब भी आएगा सर, एरर लेकिन रिड्यूस होने के चांसेस है। क्वेश्चन उठेगा क्या रिव्यू है जरूरत? अगर आंसर उसको आया यूजिंग दिस रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑटोमेटेड एग्जामिनेशन टूल, यस रिव्यू जरूरी है, they'll transfer it to review unit। मैंने आपको रिव्यू यूनिट के बारे में एक्सप्लेन किया था। they'll transfer it to review unit, national faceless assessment center to assign draft AO order to review unit, applying automated examination tool and risk to conduct review। रिव्यू यूनिट में बैठे हैं सर, हेडेड बाय एडिशनल कमिश्नर्स, जॉइंट कमिश्नर्स, यानी एसीडीसी आईटीओ का जो ऑर्डर रिव्यू करेंगे वो उसके सीनियर ऑफिसर्स होंगे सर। तो आप देखिए हायरार्की वाइज सारा स्ट्रक्चर है, द सीनियर ऑफिसर इज गोइंग टू रिव्यू द ऑर्डर, मतलब बकायदे सबऑर्डिनेट, मतलब एक सेम लेवल के लोग ऑर्डर रिव्यू नहीं कर रहे हैं, सीनियर पर्सन इज रिव्यूइंग ऑब्वियसली विद द टीम। रिव्यू यूनिट का क्वेश्चन आएगा, या तो वो हाँ करेगा या ना करेगा सर। अगर रिव्यू यूनिट अग्री कर जाता है कि नहीं ठीक है कोई गलत नहीं है ऑर्डर, तो क्लॉज 18 में हम जाते हैं और क्लॉज 18 कहता है फॉलो प्रोसीजर इन क्लॉज 16। क्लॉज 16 यही था कि वापस एनएफएसी को कहो कि तुम ड्राफ्ट ऑर्डर रिव्यू करो, मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है इसमें। लेकिन अगर उसको लगता है एरर है तो एनएफएसी टू सेंड न्यू असेसमेंट यूनिट, जैसे उसको होगा वो मॉडिफिकेशन रिपोर्ट बनाएगा और सबमिट कर देगा फेसलेस को। अब आप समझिए ड्राफ्ट ऑर्डर, अब ये जो ड्राफ्ट ऑर्डर और मॉडिफिकेशन रिव्यू यूनिट का रिपोर्ट है, ये दोनों किसी और असेसमेंट यूनिट, नॉट वो जिससे पहला बने, किसी और असेसमेंट यूनिट को यूजिंग मशीन लैंग्वेज वो ट्रांसफर कर देगा। कौन? सिंपल, एक पर्सन, वो नेशनल, एक एंटिटी नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, वही फ्रंट एंड है सर, आप एक दूसरे को नहीं मिल सकते, सिर्फ एवरी कम्युनिकेशन इज थ्रू फेसलेस असेसमेंट सेंटर। Now new assessment unit to prepare final draft EO order, फाइनल ड्राफ्ट यानी मॉडिफिकेशन रिव्यू यूनिट का रिपोर्ट और ड्राफ्ट ऑर्डर के बेसिस पे वो फाइनल ऑर्डर बनाएंगे और सेंड इट टू एनएफएसी, वो भी एनएफएसी को भेजेंगे। अपॉन रिसीविंग द फाइनल ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर, फिर वही सेम प्रोसीजर एनएफएसी का है सर। हो सकता है एनएफएसी यही प्रोसेस को 2 बार और रिपीट करे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, ये प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बट जब तक एनएफएसी कन्विंस नहीं है तब तक वो फाइनल शोकॉज और ड्राफ्ट ऑर्डर नहीं शेयर करेगा असेसी से। अब आपको मैं एक और पॉइंट बताता हूँ सर, प्रैक्टिकली आपने असेसमेंट ईयर 18-19 किया, आपने देखा होगा, मैं बहुत सारे लोग लिंक कर पा रहे होंगे जिन्होंने कराया है, जुलाई अगस्त सितंबर 2020 के बाद सर कोई क्वेरी नहीं आई, सीधे फरवरी 2021 में क्वेरी आई फाइनल। क्यों? उस पीरियड में वेरिफिकेशन चल रहा था सर, उस पीरियड में वेरिफिकेशन चल रहा था, फिर फरवरी 2021 में क्वेरी आई कि ये क्वेरीज हैं, या मार्च में क्वेरी आई ये क्वेरीज हैं। वो फाइनली कंसाइज होके वही इश्यूज आपके सामने आए जहां पे एओ को एडिशन करना है, आपने उसका रिप्लाई कर दिया। उसके बाद शोकॉज आपको मार्च या अप्रैल में मिला, 24 अप्रैल को तो सर्कुलर आ गया था सीबीडीटी का, जहां एक्सटेंशन कर दिया गया था 30 जून तक का टाइम। उसके पहले बहुत सारे ऑर्डर्स पास हुए थे। तो ये प्रोसेस का टाइम जो था वो वेरिफिकेशन, टेक्निकल, ये सारा प्रोसेस हुआ है उसके बीच में। जब फाइनल क्वेरी आई है तो आपके पास फरवरी या मार्च में भेजी गई थी। पहले मार्च वाज द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग पासिंग एन ऑर्डर, आपको पता ही होगा, फिर एक्सटेंशन करके अप्रैल कर दिया गया, फिर अप्रैल में उसको एक्सटेंशन करके टिल जून कर दिया गया था बिकॉज ऑफ दिस कोविड। अब ये सारी चीजें होने के बाद सर अगर लगता है वेरिएशन है तो नेशनल फेसलेस आपको शोकॉज इशू करेगा और ड्राफ्ट ऑर्डर आपको भेज देगा एज एन एसएससी। नाउ यू हैव टू गिव अ रिप्लाई सर, दिस इज इंपॉर्टेंट।
यहाँ रिप्लाई देना बहुत जरूरी है एंड मेटिकुलसली ड्राफ्ट करना रिप्लाई वन बाय वन। मतलब मैं तो एक ही वर्ड फिर रिपीट करूंगा, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, पैरा बाय पैरा, आपको उनके आर्गुमेंट्स को डिमोलिश करना पड़ेगा। आप करेंगे तो इट इज बेटर फॉर यू। रीजन क्या है, आपके पास एविडेंसेस है। हियरिंग मांग लीजिए, मैं हमेशा सबको कहता हूँ ऑलवेज आस्क फॉर पर्सनल हियरिंग। नहीं मांगेंगे तो आगे प्लीडिंग लेना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मांग लीजिए, देंगे तो वैसे भी नहीं होगा, लेकिन यू हैव टू टेक इट दैट ग्राउंड इन योर सबमिशन। उसके बाद फाइनली ये सारे होने के बाद रिप्लाई कॉग्निजेंस लेके वो असेसमेंट यूनिट फाइनली वो फाइनल रिवाइज ड्राफ्ट एओ ऑर्डर बनाएंगे और इन सारे प्रोसेस के बाद आपका असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा। मैं आगे इस वाली स्लाइड्स पे नहीं आऊंगा बिकॉज यहाँ पे 144C डीआरपी और ये आपका ट्रांसफर प्राइसिंग का इशू है, सो इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू टच दैट। सो मेजरली ये सारे क्वेरी के बाद ये पूरा 144B एक्सप्लेन कर रहा है। मैंने आपको 144B सबसेक्शन 1 एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपके सामने बेयर एक्ट है तो आप देख सकते हैं। वी हैव डिस्कस सबसेक्शन 1 कंप्लीटली। हमने सबसेक्शन 3 क्या होता है, फेसलेस रीजनल असेसमेंट, ये सारा कवर कर लिया है। तो 144B में सबसेक्शन 1 पूरा इस फ्लोचार्ट में कवर कर लिया, सबसेक्शन 3 कवर कर लिया, कौन कौन सारी चीजें आती हैं, सारी चीजें कवर कर ली। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, क्या क्या चीजें कवर नहीं होती। सेंट्रल चार्जेस जो सर्च के असेसमेंट से वो कवर नहीं होते। इंटरनेशनल टैक्स के मैटर्स कवर नहीं होते 144B में। नेशनल फेसलेस में ये दो चीजें कवर नहीं करते, ई में मेंशन है। जो भी असेसमेंट 1 अप्रैल 2021 से इफेक्टिवली अब है वो सारे 144B में होंगे और सारे प्रोसीजर्स नोटिफिकेशन के थ्रू इनकॉर्पोरेटेड है 144B में। अब क्वेश्चन आता है दिव्यांशु, कम्युनिकेशन का मोड क्या रहेगा? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर। व्हाट इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन? सबसे क्वेश्चन है, जब हम हियरिंग के चांसेस कम है तो हम बात कैसे करेंगे आपस में? Sir, in the faceless assessment era, the only way to now make any submission or communication with the department is by way of making submission to registered account of ITBA. ये अब आपको रात 12 बजे के बाद चेक करना पड़ेगा कि नई वेबसाइट में कैसे आया कंपैरिजन पिछले से। बट मैं ये मानता हूं कि अब थोड़ा यूजर फ्रेंडली ज्यादा होगा। जो टेक्निकल ग्लिचेस आपको मिल रहे थे अभी एग्जिस्टिंग वेबसाइट में, वो टेक्निकल ग्लिचेस आपको नई वेबसाइट में नहीं मिलेंगे। सिंपल सिंक्रोन, लेकिन हाँ आपको डेटा शायद हो सकता है ये आपसे वापस पैन आधार लिंकिंग मांगे, ये देखते हैं। अभी तो वो डीएससी रजिस्टर करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन पैन आधार लिंक जो आपने किया हो सकता है वो सिस्टम में फ्लॉ आ गया और वो वापस आपसे लिंक मांगे कि आप वापस पैन आधार को लिंक करिए। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी। अभी तक तो ऐसी कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन मेल के थ्रू नहीं आई। अभी सिर्फ ये कहा गया है कि आप जो मेल आ रही है इनकम टैक्स से कि आप डीएससी अपलोड करिएगा वापस। सर सारी कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक होगा। सो अब आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत रॉबस्ट बनाना पड़ेगा ऑफिस का, क्योंकि आपको कंप्यूटराइज सारा काम होना है, आपका स्कैनर प्रॉपर होना चाहिए, सब कुछ। क्यों? सिर्फ वेरिफिकेशन यूनिट में कई प्रिस्क्राइब कंडीशंस हैं जिनमें कहा है दे कैन रिजॉर्ट टू फिजिकल कम्युनिकेशन, दैट्स ऑल। बाकी सब कुछ ऑनलाइन होना है, इलेक्ट्रॉनिक। ऑब्वियसली ऑडिट ट्रेल रिकॉर्ड सारे रहेंगे ना सर ऑनलाइन। गवर्नमेंट वांटेड एवरी रिकॉर्ड्स टू बी देयर, कोई रिकॉर्ड्स एविडेंसेस हटे नहीं, क्योंकि कल को आप प्लीडिंग चेंज नहीं कर सकते। जो भी एविडेंसेस है वो ऑनलाइन रहेंगे। सर ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन 144B में प्रिस्क्राइब्ड है। ये रजिस्टर्ड ईमेल अकाउंट्स, आपका जो एक्सेस होना है वो ईमेल के थ्रू, सिर्फ आईटीबीए पे पोर्टल पे नहीं डाल रहे हैं वो साइमल्टेनियसली, अगर आपने आईटीबीए पे क्लिक किया होगा तो साइमल्टेनियसली दे सेंड अ रजिस्टर्ड ऑन ईमेल आल्सो, ईमेल आपको भेजते हैं। ये 6 ईमेल आईडीज कम्युनिकेशन का मोड दिए हुए हैं सेक्शन में। ईमेल एड्रेस अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग अकाउंट, जो पोर्टल पे आपका ईमेल आईडी है माई प्रोफाइल में। एक तो वो जब आप चेंज करते हैं तो ओटीपी मांगता है ना सर, एक तो वो, एक वो जो लास्ट आईटीआर में आपका ईमेल आईडी है, एक वो और वर्ड है कोई भी इनमें से किसी में भी भेज सकते हैं, एक वो जो परमानेंट अकाउंट नंबर के डेटाबेस में अवेलेबल है रिकॉर्ड्स में, एक वो अगर ये सब नहीं है तो आधार में जो आपकी ईमेल आईडी है, फिर मैं कह रहा हूं आधार से सब कुछ लिंक है, सारा डेटा आधार के थ्रू आ रहा है। यानी आज की डेट में आने वाले टाइम में आप गूगल टाइमलाइन में आप ट्रैवल कहाँ कर रहे हैं, आपके पास मेल आती है गूगल टाइमलाइन फ्रेम की, वो भी रिकॉर्ड आएंगे कि भाई यहाँ ट्रैवल किया है इन्होंने, सब कुछ लिंक होना है आगे। तो आधार में जो ईमेल आईडी आपके पास आती है जब भी आप कुछ भी करते हैं आधार से रिलेटेड, वो ईमेल आईडी
कंपनी एलएलपी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में एमसीए पे जो रजिस्टर्ड अकाउंट है, जो नई कंपनी आप इनकॉर्पोरेट करते हैं उसमें जो ईमेल देते हैं, या जो आरओसी रिटर्न आप फाइल करते हैं उसमें जो ईमेल देते हैं, जो वहां पे आ रहा है वो ईमेल आईडी वो ले सकते हैं। या फिर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो अपने नाम से वकालतनामा या पावर अटॉर्नी फाइल करके करता है, तो उसका जो उसके भाई अगर सीए है तो मेंबरशिप नंबर डालना होता है, लॉयर है तो पैन नंबर डालना होता है, बार काउंसिल आईडी से लिंक नहीं है डेटा। अब वो शायद फोर्स भी नहीं कर सकते, बार काउंसिल के केस में तो बोल नहीं सकते। तो आप जैसे आप पैन नंबर डालते हैं आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आ जाता है, तो वो ईमेल भी आपका करस्पॉन्डेंस एरिया हो सकता है, क्योंकि आप एज एन ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है, तो आपकी ईमेल पे भी जो वो ईमेल भेज रहे हैं ये डीम टू बी प्रूव कि वो भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इस सेक्शन में रियल टाइम अलर्ट का कॉन्सेप्ट है कि मोबाइल ऐप के थ्रू कम्युनिकेशन आपको मेल पे मैसेज किया जाएगा। वो अभी तक एक्टिवेट नहीं था, लेकिन ये नई वेबसाइट के बाद पूरी एक्सपेक्टेशन है कि मोबाइल ऐप रियल टाइम अलर्ट से जो मैसेजेस आते हैं ना आपके पास फोन पे रजिस्टर्ड फोन नंबर पे, वो शुरू हो जाएंगे आपके, जो पहले नहीं हो रहे थे अभी। एक क्वेश्चन आता था कि सर मैं हर बार आईटीबीए थोड़ी ना खोल के देखूंगा, तो मेरा पॉइंट है सर आप ईमेल चेक करो, जो ईमेल वहां आपके पोर्टल पे वो ईमेल पे ईमेल भी आएगा वहां से, अगर सिर्फ आईटीबीए पे नहीं। और अब आफ्टर दिस न्यू वेबसाइट देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि वो रियल टाइम अलर्ट मैसेजेस भी आपके मोबाइल नंबर पे आना शुरू हो जाए। मोबाइल नंबर वो जैसे आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है सर, तो आप अगर आपने जैसी पावर अटॉर्नी मेंबरशिप नंबर से डाला, तो आपका जो मोबाइल नंबर लिंक है वो लिंक ऑटोमेटिकली उस मोबाइल पे मैसेज आएगा। लेकिन पैन नंबर मास्क्ड आएगा, मास्क मतलब आखिरी 4 डिजिट पैन नंबर के दिखेंगे, पहले वाले नहीं दिखेंगे आपको। ऑब्वियसली वो जरूरी भी है प्राइवेसी पर्सपेक्टिव के लिए क्लाइंट के। तो अब आपके पास स्ट्रॉन्ग एक्सेल शीट होनी चाहिए जहां आप वो 4 डिजिट डाल के चेक कर सके ये पैन किसका है, बिकॉज आपके पास तो बहुत सारे क्लाइंट, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो आपके पास पता होना चाहिए कि 4 डिजिट डाल के कि भाई कौन सा पैन नंबर में ये 4 डिजिट आ रहा है, तभी आपको पता चलेगा अच्छा इस क्लाइंट का, इस पर्टिकुलर पर्सन का ये डेटा है। थोड़ा सा कंट्रोल, क्योंकि आप अगर ईमेल मिस कर गए सर, टाइमली रिप्लाई नहीं किया, तो पोर्टल बंद हो सकता है, पोर्टल बंद हो सकता है तो कल को प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर मान लीजिए हमारे इस वजह से पोर्टल बंद हुआ, हमें नहीं देखा और आइडेंटिफाई किया और रिप्लाई नहीं गया, तो कल को क्लाइंट भी ये क्वेश्चन रेज कर सकता है आपने क्यों नहीं किया। तो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना बहुत जरूरी है इसमें। सर कई इश्यूज जो फेसलेस असेसमेंट में आ रहे हैं, मैं कुछ जजमेंट डिस्कस करता हूं सर, बड़ा इंटरेस्टिंग। एक पहला क्वेश्चन सर, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि दिव्यांशु क्या हम कब रिट फाइल कर सकते हैं? सर पहले रिट के बारे में समझिए, रिट क्या है। आर्टिकल 226 एंड 227 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर और रिट दी है ऑनरेबल हाई कोर्ट, जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट को, एंड इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन। और उस केसेस में आप करते हैं अवेल जहां अपीलेट फोरम में, जहां स्टैट्यूट इनकम टैक्स लॉ में ऑल्टरनेटिव रेमेडी नहीं है आपकी, जनरली रिट फाइल होता है। जैसे रिफंड अटक गया, नहीं दे रहे हैं, सो उस केसेस में आप रिट फाइल कर रहे हैं। अब क्वेश्चन होता है फेसलेस असेसमेंट में हम रिट कैसे फाइल करेंगे? सर अपीलेबल ऑर्डर है सर, फर्स्ट अपील में जा सकते हैं, 246A का प्रोविजन है आपका, इनका ट्राइब्यूनल में सेकंड अपील का प्रोविजन है, 260A में हाई कोर्ट का प्रोविजन है, सुप्रीम कोर्ट का। आप कैसे कर सकते हैं रिट? वॉयलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कैलकाटा डिस्काउंट सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो कहता है ऑनरेबल हाई कोर्ट को कि बहुत सारे केसेस में आप रिट एडमिट कर सकते हो, उसके बावजूद अगर ऑल्टरनेटिव रेमेडी है तो। जब आप अपने काउंसिल से डिस्कस करते हैं रिट के लिए, तो डायग्नोस्टिक व्यू लेना जरूरी है कि क्या रिट बनना, अगर 50-50 चांस है तो रिट फाइल करना चाहिए। लेकिन जहां लग रहा है रिट है ही नहीं, बनता ही नहीं, वहां रिट में कई बार ऐसा होता है हाईकोर्ट कॉस्ट लगा देती है। तो इसलिए जानना बहुत, डिपेंड ऑन कोर्ट टू कोर्ट, एवरीथिंग डिपेंड ऑन द कोर्ट टू कोर्ट। कुछ मैटर्स, अभी बहुत सारे मैटर्स ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने आए, जिसमें कुछ इश्यूज मैं टेकअप करता हूं। जैसे इश्यू एक लिया गया बहुत सिंपल सा, 23 अप्रैल को शोकॉज इश्यू किया गया, 22 अप्रैल 2021 को शोकॉज इश्यू किया और 24 घंटे का टाइम दिया। मैं 24 घंटे में ऑब्वियसली जो सीए थे उनके फादर आईसीयू में एडमिट थे, कोविड हो गया था, बहुत मुश्किल थी, उन्होंने एडजर्नमेंट सीक कर लिया और कोविड रिपोर्ट सबमिट कर दी और कहा कि मेरे फादर इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल एंड वेरी, आपको पता है अप्रैल बहुत खतरनाक मंथ था सबके लिए, बहुत जेन्युइन रीजन मुझे टाइम एक्सटेंशन दिया जाए। एओ के पास टाइम तो था नहीं, 30 अप्रैल को उसको टाइम बारिंग असेसमेंट कंप्लीट करना था। मैं 22 अप्रैल की बात कर रहा हूं, जो नोटिफिकेशन आया है सर्कुलर डेट एक्सटेंशन का वो 24 अप्रैल को आया, तो 22 तक नहीं था वो। अब आप ये सोचिए 23
कंप्लीट नहीं हुआ, 23 की रात 12 नहीं बजा, शाम को 6 बजे ऑर्डर पास हो गया। दिस इज अ केस ऑफ वॉयलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। आपको इतनी किस बात की चलती है? आपके पास 30 तारीख तक का टाइम ऑर्डर पास करने का। अगर अगर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को इनकन्वीनियंस है, विच इज अ जेन्युइन, पूरे इंडिया में प्रॉब्लम्स चल रही थी, आप 3 दिन का टाइम दे देते। आई एम नॉट सेइंग कि आप टाइम बारेंगे, आप 3 दिन दे देते कि ठीक है, दैट्स अ जेन्युइन रीजन, 3 दिन का टाइम देते, वो मैनेज करते। 3 दिन देना चाहिए था, आपने नहीं दिया। प्लस आपने जो टाइमलाइन मेंशन किया था 12 बजे रात, उसके पहले आपने ऑर्डर पास कर, इतनी क्या जल्दी थी? दैट इज कॉल्ड अ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इस तरीके के केसेस हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, हाई कोर्ट में डायरेक्शन, और उन्होंने पर्सनल हियरिंग मांगी थी, तो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया और हाई कोर्ट ने ये बोला कि आप वापस करो, कॉश किया और कहा वापस शो कॉज कम ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर स्टेज पे जाओ, गिविंग 1 वीक टाइम टू द एपेलेंट टू फाइल अ ऑब्जेक्शन अगेंस्ट दैट, और उसके बाद आप पर्सनल हियरिंग फिक्स करोगे, टाइम और डेट कम्युनिकेट करोगे मेल पे, और उसके बाद आपको जो करना है करो, लेकिन देन उसका कॉग्निजेंस लेने के बाद ऑर्डर पास करो। एक केस। दूसरा केस, एओ को बोला गया कि सर मुझे 3 दिन का टाइम दे दो, 24 घंटे का टाइम नहीं है। मतलब देयर आर लॉट ऑफ हाई कोर्ट जजमेंट्स जो कहता है कि 24 घंटे नहीं, आप मिनिमम 7 दिन का टाइम, शोकाज का 7 दिन का टाइम, तो 24 घंटे में कहां से डेटा कोलेक्ट कर लेगा? अब तो 148A जो नया सेक्शन आया है इनकम टैक्स एक्ट में, उसमें भी मिनिमम 7 डेज की बात कर रहे हैं, जो बाकी हाई कोर्ट कह रहे थे। हमने उसमें सबमिशन में लिखा कि सर 24 तारीख को सर्कुलर आ गया है, डेट एक्सटेंड होकर 30 जून तक हो गई है, तो मुझे प्लीज टाइम दे दीजिए। आप सोचिए, मैंने 24 अप्रैल का सर्कुलर रेफर करने के बाद भी एओ ने मुझे टाइम नहीं दिया, ऑर्डर पास कर दिया मेरे अगेंस्ट। उसको मैंने चैलेंज किया, इररिस्पेक्टिव मेरे पास ऑल्टरनेटिव रेमेडी थी, उसको मैंने रिट में फाइल किया और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कॉश किया ऑर्डर, डिमांड कॉश की, डिमांड स्टे किया, ऑर्डर कॉश किया, पेनल्टी स्टे की, और कहा बैक टू ड्राफ्ट ऑर्डर कम शो कॉज, गिविंग यू 1 वीक टाइम टू फाइल योर ऑब्जेक्शन, फेसलेस हियरिंग फिक्स करो ऑनलाइन के थ्रू, जो प्रोसेस है वीडियो, अब मत देखो एक दूसरे को, कोई जरूरत नहीं है, ऑनलाइन के थ्रू हियरिंग फिक्स करो, उनकी बात सुनो एंड देन टेक अ डिसीजन आफ्टर अप्लाइंग योर ब्रेन एंड देन पासिंग ऑन। दीज वर द केसेस। एक केस और आया सर, रिट डिसमिस हो गई। मैं आपको बता रहा हूं, उसमें उन्होंने मेरिट पॉइंट रेस करना शुरू कर दिया। मेरिट पॉइंट रेस करते ही कोर्ट ने कहा कि मेरिट आर्ग्यूमेंट हम नहीं सुनेंगे, मेरिट के लिए आपके पास ऑल्टरनेटिव रेमेडी, आप जाइए, मेरिट नहीं सुनेंगे। तो उन्होंने कहा मेरे को बचाइए, प्रोटेक्शन दीजिए, मेरे को 20% पे करना पड़ेगा फर्स्ट अपील में, हाई पिच असेसमेंट है, 200 गुना ज्यादा हाई पिच असेसमेंट है, मैं कैसे पे करूंगा? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो प्रोविजंस में लॉ में दिए हैं आप जाइए, अवेल करिए, अगर वो अपॉर्चुनिटी नहीं देते, नहीं सुनते आपकी बात, फिर अब ये सारी रेमेडी एग्जॉस्ट करके फिर आइएगा। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, आप ये देखो, जहां भी आपकी बात नहीं सुनी जा रही, देयर लॉट ऑफ हाई कोर्ट इज सपोर्टिंग, बट अभी तक के जितना ग्राउंड हुआ है सब वॉयलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ग्राउंड पर रिट फाइल हुआ। तो आप अपनी कैटेगरी देखिए, अगर उसके बावजूद उन्होंने टाइम नहीं दिया, तो ये आपको डिसीजन लेना है कि क्या करना है, एंड देन यू फाइल अ रिट। बट मेक श्योर व्हेनेवर यू गोइंग फॉर अ रिट, एसएससी को हमेशा मैं कहता हूं कि प्लीज गो विद अ क्लीन हैंड। अगर कहीं भी आपने कोई भी प्रॉपर रिप्लाई नहीं फाइल किया, कुछ गड़बड़ है, प्लीज डोंट अवेल रिट ऑप्शन, बिकॉज अगर कोर्ट ने पकड़ लिया कि द पर्सन इज नॉट कमिंग विद अ क्लीन हैंड, तो कॉस्ट भी लगा सकता है कोर्ट। तो बहुत जरूरी है चार्टर्ड अकाउंट हमेशा ट्रांजेक्शन समझना, और फिर यू डिस्कस विद योर एक्सपर्ट काउंसिल, हुएवर इज योर लॉयर, आप डिस्कस करिए, एनालिसिस करिए, और फिर डिसाइड करिए कि रिट फाइल करना है क्या इसमें। लेकिन अगर करना है तो क्विकली करना है, क्योंकि सर डिमांड नोटिस आने के क्विकली आपका मीटर चालू हो जाता है, आपको डिमांड पे करना है, जो करना है फिर क्विकली करना है। Principle of natural justice, personal hearing, one of the major principle of natural justice, sir. एक चीज और है सर, रूल इज हाउवर साइलेंट अबाउट ग्रांटिंग एनी हियरिंग बिफोर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन और कॉन्डोनेशन। फर्स्ट अपील में डिले कॉन्डोनेशन एप्लीकेशन होता है, आपको पता है जब आप डिले करते हैं, आज की डेट में तो सर डिले कॉन्डोनेशन चल नहीं रहा है। आपको याद होगा सर 25 मई को एक ऑर्डर पास हुआ था, सीबीडीटी ने जो फर्स्ट अपील फाइल करने के लिए पहले तो 31 मई तक का टाइम दिया गया था, 1 अप्रैल को, उसके बाद किसी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में केस फाइल कर दिया था रिट में कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनलिमिटेड टाइम दे दिया है बिकॉज ऑफ कोविड, इसका कंप्लायंस आप नहीं कर रहे हैं। तो अगले दिन कोर्ट ने उसका टाइम फिक्स किया, और उस टाइम फिक्स होने के एक दिन बाद ही सीबीडीटी ने सर्कुलर इशू कर दिया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फाइल कर सकते हैं, ओपन एंडेड छोड़ दिया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट है आप भी यू कैन टेक अ व्यू। अब मान लीजिए डिले कॉन्डोनेशन एप्लीकेशन, जब भी आप डिले कॉन्डोनेशन फाइल करते हैं सर, हियरिंग इज मस्ट। पहले कोर्ट कॉन्डोनेशन एप्लीकेशन सुनती है, जब डिले कॉन्डोन करती है तो मेरिट पे आती है।
अब फेसलेस में प्रॉब्लम क्या है, हो सकता है वो रिजेक्ट कर दे बिना डिले कॉन्डोनेशन एप्लीकेशन की हेयरिंग फिक्स किए। तो ये भी एक पॉइंट है जो वॉल्यूशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में आएगा कि अगर बिना अपॉर्चुनिटी दिए आपका डिसमिस कर दे। एक पॉइंट और सर, मैं सबको यही बोलूंगा, प्लीज इंश्योर करिएगा जो टाइम लिमिटेशन अथॉरिटी ने दिया उसको कंप्लाई करके रिप्लाई फाइल कर दीजिएगा, नहीं तो एक्सटेंशन ले लीजिएगा। पोर्टल बंद करने के चांसेस बहुत हैं, हो सकता है टाइम के बाद पोर्टल क्लोज कर दे ऑफिसर, और आपको नहीं मालूम ऑफिसर कौन है, आप अपनी ग्रीवियांस कहां लेके जाएंगे। तो आप टाइमली करिए, कल को आप अपना केस स्ट्रॉन्ग रखिए ना। कल को मान लीजिए पोर्टल बंद करके ऑर्डर पास कर दो तो आपकी फर्स्ट अपील में तो केस हो गया, हाँ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है। सो प्लीज अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एडजर्नमेंट सीक कर लीजिए, लेकिन टाइम के पहले सीक करके रिप्लाई ऑनलाइन फाइल कर दीजिए। इसमें सर कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट है। सबमिशंस बहुत बड़ा पॉइंट आता है अब कि फेसलेस में हाउ वी ड्राफ्ट सबमिशन। The drafting has a major role in faceless. Everything depends on drafting. क्यों? Why the drafting is major role? Many of the people are facing problem because हम categorical point to point argument नहीं place कर रहे हैं. We have to raise all our contention before the officer. Take an example. Number one. Let us start with number one. 143(2) notice they have issued. You please check whether it is a limited scrutiny, whether it is a complete scrutiny. If it is a limited scrutiny, there is certain questions prescribed, you give a reply. And in case AO, without taking a sanction from the senior officer, issue you a 142(1) notice covering many of the areas, though it is a limited scrutiny, then raise your objection. And in spite of that, you're raising an objection. अगर उसने आपका एड्रेस नहीं किया, so that's a good case of filing a writ also. मतलब मैं आपको एस्पेक्ट बता रहा हूँ। सबसे पहला लिमिटेड और कंप्लीट स्क्रूटनी 143(2) में देखिए, अगर लिमिटेड है तो मेंशन होगा लिमिटेड है या कंप्लीट है। उसके बाद 142(1) में लिमिटेड क्वेरी आ रही है, कंप्लीट, नंबर वन। एक चीज और, अगर आपको लग रहा है देयर इज सम एरर और समथिंग, रेज एन ऑब्जेक्शन एट दैट स्टेज ओनली। सर आपको मैं एक सेक्शन बता रहा हूं, 292BB का एक सेक्शन है, आप चाहे तो नोट कर ले, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। Notice deemed to be valid in certain circumstances. ये चैप्टर 23 मिसलेनियस चैप्टर ऑफ द इनकम टैक्स स्टैट्यूट में है। 292BB, हर अपील में रेवेन्यू स्टैंडिंग काउंसिल टेक्स द प्लीडिंग ऑफ 292BB। अगर इफ यू हैव अ बेयर एट प्लीज सी, और अगर आप वेबसाइट पे भी खोलना चाहे तो आप 292BB, देयर वाज अ प्रोवाइजो इंसर्टेड, यानी अगर कोई भी एरर है नोटिस में, आपने अगर ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, देन इट इज डिफिकल्ट। प्रोवाइजो सेज provided that nothing contained in this section shall apply where the assessee has raised such objection before the completion of such assessment or reassessment. Any error, anything, raise an objection. Notice issued in the name of the deceased, मान लीजिए टाइम बारिंग, a very good question, 148 issued, टाइम बारिंग 31st March 2021, टाइम एक्सटेंडेड टिल 30th June now. हम उसको छोड़ देते हैं अभी तो, टाइम फॉर द टाइम बीइंग 148 has changed in the बेयर एक्ट। आपको पता है फाइनेंस एक्ट 2021 ने 148 को पूरा रिवैम्प कर दिया, लेकिन अभी भी पुराने कुछ नोटिसेस असेसमेंट ये 13-14 के और 14-15 के जो टाइम बार्ड हो जाने चाहिए थे, वो टाइम बार्ड नहीं हो गए। 30 जून तक का टाइम है अभी 13-14। तो उसमें अगर किसी डिसीज्ड असेसी के नाम से है जिसकी डेथ हो गई, मैं आपको और बताऊं, किसी असेसी की अगर डेथ हो गई है, आपको इंटीमेट करना डिपार्टमेंट को मैंडेटरी नहीं है। देयर इज अ ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट टेकिंग द कॉग्निजेंस ऑफ पैन इंडिया हाई कोर्ट जजमेंट ऑन सविता कपेला प्रोनाउंस्ड लास्ट ईयर इन जुलाई 2020, और उस पे बहुत सारे जजमेंट, मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, अहमदाबाद, गुजरात हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, सब राजस्थान, सारे जजमेंट उन्होंने इंकॉर्पोरेट किया है। तो अगर डिसीज असेसी के नाम से नोटिस है, ऑब्जेक्शन उसी समय रेज करिए, 148 में रिटर्न फाइल करिए, रीजन की कॉपी मांगिए, ऑब्जेक्शन ले लीजिए। नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे 292BB। बट खैर डिसीज असेसी में तो कोर्ट ने भी कह दिया 292BB लीगल हेयर पे नहीं लगता, बट कोई भी ऑब्जेक्शन अगर आपका लग रहा है, कंटेंशन ले लीजिए तुरंत। दैट इज एन आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग। नहीं लेंगे देन रेवेन्यू ऑलवेज टेक द प्लीडिंग ऑफ 292BB।
आगे चल के। सबसे इंपॉर्टेंट है सर 143(2) notice, they'll send you some query, please reply, they'll give you 15 days time to file a reply. Give reply in 15 days or else seek an adjournment, ask for the time. As per the statute, extension provision is there. अगर आपने अवेल नहीं की, maybe you cannot take that grievance later on, क्योंकि आपको provisional statute का फॉलो करना पड़ेगा लॉ का। 142(1) आता है, अगर मान लीजिए कंप्लीट स्क्रूटनी में 1 to 20 पॉइंट्स हैं, स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स, और एक चीज मैं बोलूं, प्लीज राइट टू द पॉइंट। जो भी सबमिशन फाइल करिए टू द पॉइंट फाइल करिए, डोंट राइट टू मच स्टोरीज, मतलब बहुत ज्यादा। और एक चीज और है, कोई भी एविडेंसेस आप लगा रहे हैं, जैसे एनीथिंग खसरा खतौनी, एनी डॉक्यूमेंट, एनीथिंग इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, कोशिश करिए ट्रांसलेटेड कॉपी इंग्लिश की लगाएं, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर ये ऑर्डर किसके पास जाएगा, असेसमेंट यूनिट। मे बी द असेसिंग ऑफिसर इज बेस्ड इन हैदराबाद, maybe in Chennai, might be he doesn't understand what the language is. Obviously I am not saying कि mandatory है, वो obviously verification unit के पास जाएगा, वो बोलेगा कि I don't understand this language, वो verify करके वहां से आएगी। लेकिन आपकी तरफ से मेरा मानना है कि ट्रांसलेटेड कॉपी सबमिट कर दीजिए, एनीथिंग विच इज इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, ताकि इजी रहे ऑफिसर को समझना। ऑफिसर को स्पून फीडिंग करनी पड़ेगी आपको इन अ वेरी सिंपल, व्हाटएवर द क्वेरी दे आर रेजिंग, लिंक इट विद योर फाइनेंशियल्स। मतलब अगर आप ऑडिटेड फाइनेंशियल टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं तो आप उससे लिंक करिए। आप अगर आपको कोई चीज मांग रहा है तो बिजनेस रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है 68 में, तो बोलिए लेजर की कॉपी लगाइए, दिस पार्टी आई हैव अ बिजनेस रिलेशनशिप सिंस लास्ट 4 ईयर, पीछे के 4 साल आगे के 2 साल भी देना चाहे दे दें, ये स्टैब्लिश करने के लिए मेरा बिजनेस रिलेशनशिप है। लेकिन जो भी देंगे प्रॉपर, जैसे पेपर बुक फाइल होती है फर्स्ट अपील और सेकंड अपील में, प्रॉपर पेजिंग। If you wanted to make a chain of events, list of date wise, जो जनरली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या एनसीएलटी इन सब फोरम्स में जाता है, आप चाहें तो यहाँ पे भी दे सकते हैं कि क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। इट इज इजी, एग्जीक्यूटिव समरी जिसे कहते हैं, आप वो दे सकते हैं। ऑफिसर के लिए इजी होगा समझना, क्योंकि अगर ऑफिसर के लिए डिफिकल्टी ज्यादा होगी तो वो एडिशन आपके ऊपर करेगा। इसलिए हमारा कोशिश है कि जितना हो सके ऑफिसर को हम सिंपल फॉर्म में चीजें दें। एक और क्वेश्चन है सर, हम लोगों के आर्ग्यूमेंट स्किल्स में सिखाते हैं एडवोकेसी में कि लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन आई गॉट माय ट्रेनिंग फ्रॉम माय सीनियर, वो कहते थे कि हमेशा एक पॉइंट बोलते थे कि भगवान ने 2 कान 1 मुंह दिया है, इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लिसन अ पर्सन देन टू स्पीक। जब आप क्वेरी समझेंगे तभी आप उसका रिप्लाई कर पाएंगे। जैसे हम लोग भी खड़े होते हैं तो वी हैव टू लिसन व्हाट द ऑनरेबल कोर्ट इज सेइंग और व्हाट द अदर साइड काउंसिल इज सेइंग, सुनना जरूरी, तभी रिप्लाई कर पाएंगे। कोई भी क्वेरी अगर अनएम्बिगुअस है, क्लैरिटी नहीं है लॉ, उस क्या लिख रहा है वो, व्हाट इज द इंग्लिश ही इज राइटिंग, प्लीज रेज अ पॉइंट एंड से दैट द क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, प्लीज एक्सप्लेन मी इन अ प्रॉपर मैनर, देयर इज नो हार्म। वो नहीं मानेगा कोई बात नहीं सर, फर्स्ट अपील में पॉइंट रेज करेंगे, एडिशनल एविडेंसेस फाइल करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, प्लीज डोंट रिप्लाई until the things are not clear in your mind what is the query is. कुछ चीजें, नोटिस फॉर स्क्रूटनी, एवरीथिंग यू हैव टू सी, मतलब आप फर्स्ट लाइन से लास्ट वर्ड तक आपको प्रॉपरली, कैटेगोरिकली, मेटिकुलसली पढ़ना है, समझना है। कोई एरर है तो उसको रेज करना एट द सेम स्टेज। कंप्लीट लिमिटेड स्क्रूटनी आई हैव ऑलरेडी मेंशन। 142(1) में अगर किसी भी स्टेज में उसने 142(1) में लिमिटेड को कंप्लीट में चेंज किया, आस्क फॉर द सैंक्शन। There is a CBDT circular of 2014-15 which says कि complete scrutiny convert करने के पहले sanction लेना पड़ेगा senior officer से। आप मांगिए, नहीं देगा it's okay, but आप मांगिए, let him not give you, ये pleading आप आगे ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका right है, you have to raise this point. Every notices, make sure to comply for every notices. और अगर आपके out of 1 to 20 points 15 points का reply है, 5 का नहीं है, तो बोल पैरा वाइज 1 to 15 का reply दीजिए, partial response category में फाइल करिए, बाकी 5 के लिए लिखेगी para 16 to 20 we'll reply in my next submission, we are collating the document. Be very clear और हर एविडेंसेस को लिंक करिएगा। यानी अगर आप पेपर बुक में मेन कवर लेटर में सबमिशन बना रहे हैं, तो अगर पेज 38 से 42 पे रिलाई कर रहे हैं, जो एविडेंसेस वाली पेपर बुक फाइल हो रही है, तो 38 से 42 आप लिखिएगा, पेज 38 to 42 जो उस पेपर बुक में है, ताकि एओ क्लियरली समझे व्हाट इज हैपनिंग। सर एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है, ये जनरली बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स में नहीं होती, मिड साइज में, छोटी सीए फर्म्स में प्रॉब्लम आती है। हम लोग ना रिटन सबमिशन फाइल कर देते हैं और क्लाइंट से ना अप्रूवल नहीं लेते उस पे। वी ऑल आर वर्किंग ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्लाइंट। तो
क्योंकि अब आपका सारा आईपी एड्रेस जाना है। आगे चल के बहुत सारे जजमेंट्स मैंने देखे डायरेक्ट टैक्सेस में भी, इनडायरेक्ट टैक्सेस में, जहां पेनल्टी प्रोसीडिंग के समय एसएससी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और अपने लॉयर्स के ऊपर प्लीडिंग ली कि उन्होंने सबमिशंस फाइल मेरे अप्रूवल से नहीं किया, मुझे नहीं मालूम था, और इस वजह से उन्होंने पेनल्टी डिलीट करने की प्लीडिंग ली और वहां पे कंसल्टेंट का एफिडेविट मांगा गया था। तो ये चीजें ना हो, इट इज बेटर कि हम जो भी सबमिशंस फाइल करें, क्योंकि हम लीगल जानते हैं सर, फैक्ट्स तो क्लाइंट को बताना है और कई बार क्लाइंट फैक्ट हाइड कर लेता है। सर बहुत सारे इनकम टैक्स में सेक्शन है, मैं आपको बताऊंगा। आपको पता होगा अभी फाइनेंस एक्ट में 281B एक सेक्शन है अटैचमेंट ऑफ एसेट का। सर बहुत सारी चीजें कंसल्टेंट के अगेंस्ट भी है, तो हमें बहुत कॉशियस रहना है। जो कहता है 98E फाइनेंस एक्ट 2021 में आया है, जो कहता है where during the pendency of any proceeding for the assessment of any income, I am reading 281B, sir, part of chapter 23 miscellaneous chapter of income tax act. Why we have to be cautious as consultant? Where during the pendency of any proceeding for the assessment of any income or for the assessment or reassessment of any income which has escaped assessment, ये point नया add हुआ सर। ये हुआ जीएसटी का फेक इनवॉइसेस का जो इशू चल रहा था, मेनी ऑफ द सीए फर्म्स कम्स इनटू द स्कैन, इसके बाद ये प्रोविजन लाया गया एक्ट में। आपको पता होगा लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग लास्ट ईयर, बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, प्रोविजन लाया गया और फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी अंडर सेक्शन 271AD where the amount or aggregate of amount of penalty likely to be imposed under the said section exceed 2 crore rupees. बेसिकली वो रीजन। अब हम देखते हैं व्हाट अटैचमेंट की पावर दे दी। अब 271AD क्या कहता है? सर इट सेज पेनल्टी फॉर फॉल्स एंट्री एटसेट्रा इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ये सेक्शन फाइनेंस एक्ट 2020 में आया था सर। 2020 और 2021 वाज अ मेजर चेंज, बजट में बहुत मेजर चेंजेस हुए थे। टू सब सेक्शन 2 मैं आप चाहें तो नोट कर ले, बाद में भी देख सकते हैं। 271AD सबसेक्शन 2 without prejudice to the provision of subsection 1, the assessing officer may direct the any other person, वो अकाउंटेंट भी हो सकता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, वो लॉयर भी हो सकता है, who causes the person referred to in subsection 1 means assessee in any manner to make a false entry or omits or causes to make any entry referred to in subsection shall pay by way of penalty a sum equal to aggregate amount of such false or omitted entry. अब यानी चार्टर्ड एक असेसी से स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया गया इन्वेस्टिगेशन में और जीएसटी में, और उसने बोला कि सर मेरे को तो मेरे सीए ने बोला था। स्टेटमेंट है ना सर, सिर्फ स्टेटमेंट है, अभी प्रूफ नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, अब इस प्रोविजन को 2 करोड़ के ऊपर का जीएसटी फ्रॉड है, भाई दिस इज द इंटरप्रिटेशन व्हिच इज कमिंग। वो 281B में वो असेसी के पास तो कैपेसिटी नहीं है। अब वो 281B में प्रोविजनल अटैचमेंट में कहे कि सो एंड सो मिस्टर, आप पे हमें डाउट है, कल को मेरी कोई प्रॉपर्टी अटैच कर ली। सो माय होल पॉइंट इज, जब तक इस पे लॉ की क्लैरिटी आएगी और क्लियर, तब तक तो जो इन्फोर्समेंट को करना है वो कर ही लेगा। तो हमारा पॉइंट ये है कि हमें हर एक चीज से डॉक्यूमेंट करना है। हमारे लैपटॉप से, हमारे डेस्कटॉप से रिटर्न सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल हो रहे हैं। हमारा आईपी एड्रेस का एक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों के लिए इतना रेलेवेंट है या नहीं, देयर वाज अ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कॉल्ड इक्वलाइजेशन लेवी इंटरनेशनल टैक्स ज्यूरिस्प्रूडेंस में, इनकम टैक्स, जिसमें आईपी एड्रेस वर्ड यूज किया गया है कि बाहर से मेरा कजन इंडिया आया, मेरी कजन की वाइफ यूएस रहती है, छोटा बच्चा है, उसको दूध का पाउडर ऑर्डर करना था, Amazon.com को ऑर्डर किया, लेकिन मेरा लैपटॉप यूज करके किया, तो उस पर क्या पोजीशन होगी। तो आप ये समझिए, अब उस लेवल पे हम जा चुके हैं गवर्नमेंट, जहां आईपी एड्रेस की ट्रैकिंग हो रही है। तो हर चीज एज चार्टर्ड अकाउंट आपकी आईटी या एज लॉयर मेरे आईपी एड्रेस से जा रही है। तो कोई भी चीज जा रही है, हम अब मेरे पास तो, मैं एज लॉयर फाइल करूं तो मेरा तो सर पैन नंबर पे डेटा जा रहा है, तो हो सकता है मेरे पैन नंबर पे वो मेरी फीस भी क्रॉस चेक करेगी, इस एसएससी के हिसाब से कितनी फीस होनी चाहिए, मे बी, आई डोंट नो। तो जो भी फैक्ट्स है, सबमिशन ऑफ क्लाइंट को मेल करिए, उससे अप्रूवल ले लीजिए, ओके करा लीजिए, चाहे वो देखे या नहीं देखे मैटर, ओके करा के फाइल करिए। सर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, एनसीएलटीज में आपको मालूम है जब पिटीशन जाती है उसके साथ एफिडेविट लगता है, जैसे डॉक्टर्स बॉन्ड साइन कराते हैं सर्जरी करने के पहले कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तो वो एफिडेविट हम लोग लिखवाते हैं मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। वो उसी तरीके से है जहां आप ये कहते हैं कि दिस वो डॉक्यूमेंट वाज ड्राफ्टेड बाय माय लॉयर और माय सीए
under my instruction and I've seen the facts and the legal and I'm agree with it. यानी अब आप जो फाइल कर रहे हैं अपने लेटर हेड पे वो क्लाइंट ने ओके कर दिया, अब आगे क्लाइंट आपकी पोजीशन अलग नहीं कर सकता क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। अब आपके आईपी एड्रेस से भी जा रहा है, आपके डेटा स्टेटस मेंबरशिप नंबर या पैन नंबर से भी जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आने वाले टाइम में। दूसरा सर, बहुत सारे केसेस में थर्ड पार्टी एविडेंसेस पे they'll rely. Sir, you have your fundamental right. Whenever they are relying on a third party, always ask for the statement copy recorded for a rebuttal. That is your fundamental right. नहीं देंगे वो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये क्वेरी रेज करनी है, ये पॉइंट अपने सबमिशन में लेना है। प्लीज प्रोवाइड मी द कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन। बहुत सारे पेनी स्टॉक के जो मैटर्स आए थे पीछे सर, बहुत सारे पेनी स्टॉक के मैटर्स में ये प्रॉब्लम लिया गया था। बहुत सारे पेनी स्टॉक में बहुत थर्ड पार्टी कोलकाता से और अलग अलग जगह से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई, कोई लिंक नहीं है, लेकिन उन्होंने एओ ने बिना ब्रेन अप्लाई उसी इंफॉर्मेशन को लिया और एडिशन कंफर्म कर दिया विदाउट डूइंग द ओन रिसर्च। तो आप कॉपी मांगिए, कोई एविडेंसेस पर रिलाई करे, प्लीज आस्क फॉर द कॉपी एंड आस्क फॉर दैट गिव मी एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिब्यूटल। वो नहीं देते, दैट इज अ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सर चार्ट्स टेबल्स, मैं 5 मिनट में सर अब सेशन कंप्लीट करूंगा, मैं क्वेश्चन आंसर भी लूंगा। सर कोशिश करिए टेबुलर फॉर्मेट में इंडेक्सिंग प्रॉपर वेल इंडेक्स बना के सबमिशंस फाइल करिए, जैसे फर्स्ट अपील सेकंड अपील में जाती है, और हर चीज लिंक करिए प्रूफ रीडिंग करके, ताकि एओ के लिए चीजें समझना इजी हो जाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। एओ नहीं समझेगा तो डिफिकल्टी हमारे लिए है। जितनी चीजें हम सिस्टमैटिकली कर सकते हैं, जैसे हम आज ऑनरेबल कोर्ट ट्राइब्यूनल मेंबर्स को समझा रहे हैं, हाई कोर्ट में समझाते हैं, हम पेज पैरा सब रेफर करते हैं, सर योर लॉर्डशिप प्लीज सी फ्रॉम लास्ट 3 लाइंस, सिंपल, ताकि उसको समझ में सब कुछ आए आप क्या रिलाई कर रहे हैं। जितना कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट आप फाइल करेंगे उतना आपके लिए डिफिकल्ट होगा। एक चीज और सर, साइज हमेशा ध्यान रखिए, कई बार आपको मे बी यू हैव टू फाइल 100-150 पेजेस, सर साइज की लिमिटेशन है वेबसाइट में, और आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, फ्री सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल और लाइसेंस सॉफ्टवेयर भी है, जहां आप अपनी डॉक्यूमेंट्स की प्राइवेसी रखना चाहते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, आप वो सॉफ्टवेयर परचेज कर सकते हैं। वो साइज को रिड्यूस कर देता है, हैवी साइज को स्मॉल कर देगा, कॉम्प्रेस कर देगा, और बट इतना कॉम्प्रेस करिएगा कि वो जो टेक्स्ट है वो विजिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि लेजिबल ही ना हो, वो रिड्यूस करके आप फाइल कर सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट मैं लूंगा सर बिफोर आई क्लोज, न्यू क्लेम बिफोर एओ। मेरे पास कई क्वेश्चंस आए, मतलब ड्यूरिंग माय प्रैक्टिस आते रहते हैं, कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की क्वेरीज आए कि दिव्यांशु मैंने ना रिटर्न नहीं फाइल किया, अब मैं नया क्लेम में रिटर्न जो फाइल किया उसमें क्लेम नहीं लिया, अब नए क्लेम में कैसे लूं? सर देयर इज अ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कॉल गोइट्स इंडिया, और पुराना जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आप अगर क्लेम नया लेना चाहते हैं तो या तो आप रिटर्न में लेंगे, या रिवाइज रिटर्न का टाइम लिमिटेशन है तो 139(5) में ले सकते हैं। एओ के सामने क्लेम नहीं ले सकते, लेकिन सर वो जजमेंट एओ के लिए लगता है, अपीलेट बॉडी में नहीं लगता। देयर इज अ जजमेंट कॉल्ड सौराष्ट्र कच्छ आल्सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जहां पे ऐसे केसेस हुए जहां 154 रेक्टिफिकेशन फाइल किया गया। तो मेरा मानना है अगर कोई क्लेम आ रहा है जहां आपकी पहली बार, ठीक है एओ नहीं मानेगा, इट्स ओके, बट आप वो क्लेम जरूर एओ के सामने ले, ताकि वो पॉइंट आपके लिए आगे फर्स्ट अपील या सेकंड अपील के लिए लाइव हो जाए और वहां पे वो प्लीडिंग आप ले सके। सर दिस इज ऑल अबाउट फेसलेस असेसमेंट सबमिशंस। आई ट्राइड माय बेस्ट कि इसको बहुत सिंपल करके समझा पाऊं, बट यस अगर कोई क्वेरीज हैं आई वुड लव इफ यू हैव अ क्वेरी और मैं एड्रेस कर पाऊं। अगर कोई भी क्वेरी है प्लीज बताइएगा। Divyanshu ji, thank you very much for your wonderful presentation. There is one query from Sir. CA Narayan Agarwal ji. Sir. He is asking for under section 44 AD, only turnover and certain balance sheet items are required to be reported. If anybody has sufficient cash in books and goes for purchase of anything in cash, in such case, how artificial intelligence will work? Every cash transaction cannot be treated as suspicious. So this is the question, like if he's having cash in hand in his books and he wanted to purchase something in cash, so how artificial intelligence will work? Sir, artificial intelligence cash in books is they can only raise a query. Of artificial intelligence means sir, wherever you are buying and selling something, wherever you are dealing with the third parties, then based on that information they can get the data. But अगर books में cash है और अगर कोई भी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के बेस पर अगर आपका स्क्रूटनी स्टार्ट होता है और 142(1) में अगर वो क्वेरी रेज करते हैं तो वो वहां पे वो जस्टिफिकेशन आपसे मांग सकते हैं उस चीज का।
From that, what I understand, because there is a limit for purchase in cash, because if you wanted to buy something in cash, then again certain limits are there, and if you are buying something beyond that limit, then in any case auditor is required to report in his Yes, sir. report. So definitely the department may take the information from that particular tax audit report as well. And moreover, let's say if you are instead of buying, let's say if you are depositing that cash into the bank, then again bank is reporting, bank is filing a report. Yes, sir. How this much cash has been deposited into the bank account, and the same is being reported into the 6AS as well. So Yes, sir. that can be controlled in that way. Another question, sir, from CA Savyakant ji. Sir, in recent months, the department, Divyanshu ji, this is the same question which we raised in the past also, like, because nowadays notices are being uploaded on the e-portal, and after that, assessee or a chartered accountant need to examine on a regular basis whether there is any notice or not. So kindly address this issue. And I think the issue is because in most of the cases, we have not updated the email ID or the telephone number. So as explained by Divyanshu ji in the past also, and I'm sure he must have covered during his deliberation now as well, that we all need to get the updated email ID and mobile number of the clients only, so that whenever there is any notice, it becomes a duty, and there is an alert also. So I request Divyanshu ji to kindly take up this matter again. Can you please explain? Yes, sir. Yes, sir. Sir, one thing which is very important, the mode of communication which is prescribed in the section is this email ID only. Now there is no physical address or nothing. Kuch bhi nahi hai. So now you have 6 modes of communication. Email ID is there. जैसे ही आपका वकालतनामा या पावर अटॉर्नी आप ऑनलाइन फाइल करते हैं, now the authorized representative email ID and the mobile number comes into the system. So there is a high probability कि जो भी ITBA portal पे they'll upload, they'll send it to the authorized representative email ID also. क्यों? क्योंकि जैसे अब मेंबरशिप मैंने खुद क्रॉस चेक किया, दो आई नेवर यूज माय मेंबरशिप नंबर, क्योंकि मेरा सारा अब बार काउंसिल के उस पे जाता है. आई हैव चेक्ड यूजिंग माय मेंबरशिप, तो मेरा वो पुराना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आ गया उसमें. तो आप जब भी आप करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी सिस्टम में ऑलरेडी है. अगर आपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऐड नहीं किया और डॉक्यूमेंट्स यू आर फाइलिंग, तो दे आर डिफरेंट वेज. पोर्टल पे जो ईमेल आईडी मेंशन है, क्लाइंट की ईमेल आईडी मेंशन है तो क्लाइंट के पास जाएगी, आपकी ईमेल आईडी मेंशन है तो जैसे वो पोर्टल पे अपलोड करेंगे, साइमल्टेनियसली यू विल रिसीव एन ईमेल आल्सो. वो ईमेल आएगा जरूर आपके पास, ये कंफर्म है. ऐसा कोई भी केसेस अभी मेरे सामने नहीं आया जहां ईमेल यहाँ ईमेल इट हैज ऑलरेडी बीन क्लोज्ड या ईमेल फुल हो चुका है. बिकॉज जीमेल में बहुत लोगों के जीमेल आईडी है जिसकी सर 15 GB की ही कैपेसिटी है, और कोविड में लोगों ने बहुत कॉपी डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, उन्होंने इनलाज नहीं कराया क्लाउड पे अभी डेटा, तो वो बाउंस हो रही हो तो अलग बात है. अदरवाइज जीमेल साइमल्टेनियसली ईमेल पे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं. दूसरा पॉइंट सर, जैसे नई वेबसाइट लॉन्च होगी 100% जैसे नई वेबसाइट लॉन्च होगी 100% मोबाइल अलर्ट्स भी शुरू हो जाएंगे सर. सर जैसे नई वेबसाइट लॉन्च होगी वैसे ही मोबाइल नंबर्स भी अलर्ट हो जाएंगे और रियल टाइम अलर्ट बेसिस पे आपको मैसेजेस आएंगे. आप मतलब या तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के मैसेज में वंस वकालतनामा और पावर अटॉर्नी इज देयर इन द सिस्टम, या फिर अगर आप अपना नहीं डाल रहे हैं, असेसी के थ्रू कर रहे हैं, तो असेसी के पास मैसेज आएंगे जो भी मोबाइल नंबर अपडेटेड है सर सिस्टम में. क्योंकि आपने देखा होगा जब आप अपना पावर अटॉर्नी देते हैं तो वो ओटीपी मांगने के लिए, कंफर्मेशन के लिए वो क्लाइंट की ईमेल और उसी पे जाता है वापस. So even if you're filing, they wanted a confirmation from the associate itself कि once they confirm only then तभी system में as an authorized representative आप system में update होंगे. Moreover, what I suggest, like all the assessee or we as a chartered accountant must check our junk mail also at times. Yes. Going into the junk as well. So that may be important mails as well. So whenever we log in at the email ID, we should check the junk mails as well. One member is asking, sir, how books of accounts will be verified in faceless scrutiny by the officer. So I believe the same process shall be there as you mentioned, like they will depute someone, officer may come and visit your place and verify books of account, or Yes, sir. They will ask for the books of account at their own place. Sir, abhi right now, what is happening, they'll send this, the query was sent by assessment unit to National Faceless. National Faceless using this artificial intelligence machine language tool, they'll send it to any of the verification unit. So verification unit can ask for the ledger copies. If the assessment unit has a specific query about some particular party, जो आने वाला टाइम है सर, what I can understand, because आपने देखा होगा एक नोटिफिकेशन इशू किया गया था जिसमें ऑडिट ट्रेल की बात हो रही थी सॉफ्टवेयर में,
कि Right, अभी right. क्या है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर में डिसेबल होता है, यानी Right. ओवर अ पीरियड टाइम वंस यू पुट एन एंट्री एंड यू डिलीट इट, देयर इज अ ट्रेल व्हिच कम्स दैट यू हैव डिलीट दैट एंट्री. गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन बिकॉज ऑफ कोविड उन्होंने 1 साल एक्सटेंशन कर दिया उसका. तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी व्हिच आई हैव ऑब्जर्व कुछ मुंबई में और कुछ बड़े सिटीज में जो मेरा कई लोगों से इंटरेक्शन हुआ, the officers are asking you to upload the tally database also. तो आने वाला जो समय हो सकता है सर, पूरा सॉफ्टवेयर वो अपलोड करने के लिए बोले कि we'll see, जो आपका फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट सॉफ्टवेयर में वो लिंक आ जाएगा कि आप अपलोड कर दीजिए, we'll go through it. तो ये भी हो सकता है आने वाले टाइम में wherein they can verify. और फिजिकल, there is a prescribed condition in the statute सर, जहां किस कैटेगरीज में फिजिकल हो सकता है, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है. मैंने सर एक एग्जांपल दूं, मैंने भी प्रैक्टिकली इस केस को हैंडल किया. एक्स जगह पे एक बोर्ड लगा हुआ था, रेजिडेंशियल एरिया था, डॉक्टर साहब का क्लिनिक था. वहां पे एक रजिस्टर्ड ऑफिस का बोर्ड लगा हुआ था जिसको मैं कमीशन पे कर रहा था. ऑब्वियसली कमीशन एक ऐसा नाम है जिसकी वजह से वैसे रेड अलर्ट इश्यू हो जाता है ऑफिसर के माइंड में कि कमीशन बोगस ट्रांजैक्शन है. जनरली ऐसा होता नहीं है. तो वहां पे वेरीफाई करने ऑफिसर पर्सनली गया, कोई नहीं मिला. तो बाहर के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि यहाँ कोई ऑफिस चलता है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं सर, तो डॉक्टर साहब की क्लिनिक है. उसने अपनी रिपोर्ट बनाई और वेरिफिकेशन यूनिट ने रिपोर्ट अपनी असेसमेंट यूनिट को दे दिया, और वो पॉइंट सर शो कॉज में भी नहीं आया, वो सीधे फाइनल ऑर्डर पास करते समय वो पॉइंट आया. ये हुआ विद द फोटोग्राफ्स, उसमें पूरी फोटो अटैच. तो वेरिफिकेशन पर्सनल विजिट हो रहा है सर, बिकॉज प्रैक्टिकली आई हैव सीन दे आर गिविंग अ फोटोग्राफ, साइट विजिट हो रही है, सब कुछ कर रहे हैं ये लोग. जरूरी नहीं वो आपके टच में आए, लेकिन वेरीफाई वो कर रहे हैं. So it is important, important for each one of us where we can guide our clients that they should go for the real-time accounting now. And as a chartered accountant, also we need to ensure the genuineness of the transactions whenever we are Correct, sir. representing our client, and then only we would be in a better position to safeguard ourselves. Sir, one more question. CA Subhash Jain ji is asking for, sir, notice under section 148 for the assessment year 2014-15 given by local AO. Then how we can get reason for reopening of case, because portal is not allowing for filing of such letter. Please supplement. I believe in that case, sir, he need to file first return under section 148, and after that he can ask for the reason, or before that also he can ask. No, sir. As per the Honorable Supreme Court GK and Drive Shot decision, the Honorable Supreme Court has given a certain guidelines how to handle it. This was guideline. This I am telling prior to the new amendment. So 14-15 Right. is applicable for previous law. Previous So law. first, sir, you file your return. Simultaneously, in your letter, you file your return and then ask for the reason to believe as well as the sanction authority approval. Also, you can ask for that in. This is mandatory, sir. But return filing is mandatory. So what I understand, most of the queries have already been resolved. I would like to add 2-3 things here. Friends, one, while any notice we are attending, we are responding on behalf of the assessee, we have to be very careful. We need to respond the notice para-wise. We should not respond the notice in a haphazard manner. Moreover, we need to pinpoint the issues. We need not to write a long story. Number 3, we should ask for the opportunity of being heard as well. And if we are not writing that particular thing in our response, then department may give you an opportunity of being heard or may not give you an opportunity of being heard. More importantly, I believe Divyanshu ji will also supplement this submission of mine. In most of the cases, it has been noticed that the department is making additions in under section 68, 69, and so on, but they are not rejecting books of account, meaning thereby they are accepting your transaction or they are accepting your books of account, but at the same time they are making an addition. So whenever you are filing your appeal, your one ground should be that the AO, learned AO, has not rejected the books of account, meaning thereby the transaction, whatever the transaction you have produced before him, he accepted the transaction, but still he added that particular amount. And especially like during the case of demonetization, जितने भी हमारे demonetization में cases हुए हैं, उसमें यहाँ तक है कि section 68 में addition है, उन्होंने section 69 में addition कर दिया, addition section 69A में होना है, उन्होंने section 68 में addition कर दिया. तो ये सारी चीजें बड़ा minutely हमको check करनी पड़ेंगी. And if we start responding the notices or the assessment orders of the learned AO in a way so that we would be replying each and every question or each and every objection of the learned AO, I'm sure we will definitely be in a better position. Moreover, as explained by Divyanshu ji, now there is a technical unit.
सो इससे पहले जो एक हमारे यहाँ एक सिस्टम बना हुआ था कि इलाहाबाद, अगर हमारा नोएडा का केस है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होता था, पंजाब का केस है तो पंजाब हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होता था, राजस्थान का जुरिस्डिक्शन जोधपुर के लिए राजस्थान हाई कोर्ट का डिसीजन वैल्यूएबल होता था. बट नाउ आई बिलीव वंस दिस टेक्निकल यूनिट इज देयर, सो व्हाटएवर द डिसीजन शैल बी टेकन बाय द टेक्निकल यूनिट, दैट शैल बी बाइंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट. मे बी पॉसिबल जो हम जजमेंट्स की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से भी आगे क्या पॉसिबिलिटी आने वाली है, आईटीएटी में हमको कोई उस जजमेंट का रिलीफ मिलेगा या हाई कोर्ट में उस जजमेंट का कोई रिलीफ मिलेगा, वो बात की बात है. बट एज फार एज द अपील under faceless regime is concerned or assessment under faceless regime is concerned, they would be bound with the decision given by the technical unit. So I'm sure you all must have got the insight of the intricacies in this faceless regime. Still, if you have any other program, if you have any other question, we can ask, because Divyanshu ji is with us. I believe most of the questions are over, sir. So without taking much of the time, now I would like to hand over the charge to Surendra Lunawat ji, and I am really thankful to CA Divyanshu Agarwal ji for his valuable time on a particular deliberation. And Divyanshu ji, just would like to add here, the members from the entire region are here. Maybe few of the members are from Indore, few of the members are from Raipur, Durg, Bhilai. Even I am seeing CA Subhash Agarwal ji is there from Noida. So your session is being watched by the members from across the region, including Rajesh Virmani ji is there from Noida, Rajiv Dide Gupta ji is there from Ghaziabad. So I'm sure everyone must have got the insight of the subject. Now, without taking much of the time, I would like to hand over the charge to the CA Surendra Lunawat ji for further proceedings. So over to CA Surendra Lunawat ji. Thank you, Atul ji, and thank you, Divyansh ji, for your very nice deliberation on the subject income tax proceeding under the faceless regime. You have elaborately discussed the procedure and the system followed by the department, and the what type of precaution to be taken by the chartered accountant or the on behalf of the SSC. I am also thankful to Sri Atul ji for your very nice conduct the VCM, today's VCM. Now I invite Dhaval ji to give you the vote of thanks. धवल जी, वोट ऑफ थैंक्स से पहले दिव्यांशु जी, आपका कुछ मेंबर्स दे वांटेड योर यूट्यूब लिंक, इफ यू हैव, सो इफ यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स. So if they wanted to see your YouTube channel, they would be in a better position to understand in future also. So I suggest you to kindly type your YouTube link in the chat box so that every member can note it down, and then they can get benefit in future. Sure, sir. Right now it is recording, and whenever we'll upload it within 1 or 2 days, we'll share Right. the link on registered mail ID. Dhaval ji, Participants, yes, sir. they are not asking for a YouTube link only for this recording. They might be willing to see more videos or more sessions of Divyanshu ji. So I believe that's why they are asking for. So if Divyanshu ji is comfortable, he can write his a link of YouTube channel so that member can watch and can take the benefit of it. Over to Dhaval ji for the proceedings. Thank you, sir. Good evening to all. On behalf of Jodhpur branch of CIRC of ICI, I, CA Dhaval Kothari, first of all, my sincerest thanks to Almighty God for making today's event a grand success. By His blessing and grace, we are able to make the event what it was. I give a really heartfelt vote of thanks to our speaker, Advocate CA Divyanshu Agarwal ji, who spent his busiest time. Today we had the opportunity to hear you and your thoughts, and this is definitely enlighten us under faceless regime. I would like to thanks to moderator of today's VCM, CA Atul Agarwal ji, Vice Chairman of CIRC of ICI, for handling VCM in a smooth manner and providing a wonderful faculty. I would like to thanks to all participants. Without their role, it is not possible to make it successful. Last but not least, I want to thank the people who worked behind the scene to execute this VCM
Thank you. Sir. Submitting end करें. Yes, sir. Thank you very much to all. Thank you Thank so you, much, sir. sir. Thank you. Thank you, Atul sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Akshay